let's get started. So last session, आवाज नहीं जा रही है? ओके ओके, सो हम शुरू करते हैं. आज मैं फिर से उसी टेम्पलेट के बनाऊंगा एंड उस दिन जो जो चीज़ें हमसे नहीं हो रही थी हम ट्राई करेंगे उससे करने की, और जो चीज़ें हमें शो नहीं हो रही थी उसके लिए मेरे पास आज एक्सप्लेनेशन भी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक डिफ़ॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट खोला है एंड आफ्टर ओपनिंग द टेम्पलेट हमें यहाँ पे व्यू ऑल में जाकर इसकी ऑर्गेनाइजेशन में जाके इसे फेसिंग में डाल देना. सो दिस इज फेस एंड प्रेस ओके एंड नाउ यू हैव द न्यू कंस्ट्रक्शन फेज ओवर हियर. उसके बाद हमें अपनी खुद की फेजेस बनानी है. सो आप फेजेस में जाएं एंड आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग एंड न्यू कंस्ट्रक्शन आपके पास पहले से अवेलेबल होगा एंड यहाँ पे आप यहाँ डेमो पे एक डेमो की फेस बना लेंगे. यू कैन जस्ट अप्लाई, नाउ इट इज क्रिएटेड. एंड ग्राफिक ओवरराइड में हमारे पास ऑलरेडी वी नो द कलर कोड. सो for the demolition phase the color code was 211. So I'm just going to solid fill for it, this one, and the color was 211, then it was 86 and 54. Okay, and 211 211 157. Okay, 157 and 9. Now it is fine. ओके, सो हमने यहाँ पे अपना कलर कोड डाल दिया एंड फॉर दिस वन दैट इज द न्यू कंस्ट्रक्शन वी आर गोइंग टू एंटर अ न्यू सॉलिड फिल कलर दैट इज 155, 86 and 54. Done. Okay, okay, you can also change these colors, that's not a problem. And for the existing you can go for gray, but there's a problem with existing, that is I will tell you later on. So now we have the new construction phase and we have level 1, level 2, and we have our elevations. You can see the elevations 1 and 2. You can just make 1 or 2 more elevations. So I'm just gonna keep it at 3000 millimeter. And the next one, that is LL, is a shortcut for the making elevation, and here we are going to keep it at 3000 or 2500, whatever you want to keep. And हमने यहाँ पे 3 elevation बना लिया. After making these 3 elevations, what we have to do is we need to assign its name. So you can just ओके, सो हमने यहाँ पे इनकी नेमिंग दे देनी है. फर्स्ट फ्लोर 1, फर्स्ट फ्लोर. ओके, दिस वाज ग्राउंड फ्लोर 2, फर्स्ट फ्लोर. एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग? Okay, so now we have 3 floor plans. Okay, these are all in the new construction phase. Okay, and now we want to keep it in our this existing and demolition phase, the same drawings. Okay, so for that you can just duplicate it, or what you can do is you can set your template first. So we have both the options. So हम यहाँ पे क्या करेंगे, we can go to architectural template and here we can either assign the wall color, that is from here, or we can assign it later on. So we will assign it later on. First make a small template type. So now we have the ground floor की एक और duplicate copy बना लेनी है हमें. Duplicate and just rename it. So first one is existing, second one is demo, and this one is new, or we can just keep this as ground floor and this one as new. So we just have to change 2 names. So what we are going to do is we are going to make this ground floor and first floor जो हमारे पास इसकी नेमिंग है इसे हम डायरेक्ट डाल देते हैं existing में. So now we have this in existing. Then okay, we have to change this to also. So this is for the demo and this is for the we already have ground floor demo, ground floor, first floor new. Okay,
सो नाउ इन दोनों डेमो को हमें डेमो फेज में डाल देना है. सो इफ यू सेलेक्ट बोथ यू विल गेट दिस फेज ऑप्शन एंड हियर वी आर कीपिंग इट इन डेमो वर्जन. And if you want to make a copy of it, you can make this copy also. So now we are going to work with these two plans. So किफ़ायत का भी मेरे पास क्वेश्चन आया था. किफ़ायत, are you there? जी 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 सौरभ। अच्छा, एम आई जी. एडिबल? Yes, you are. हाँ। अच्छा, जब मैंने प्लान बनाया था और उसके बाद जो उसकी प्लान वन है या ग्राउंड फ्लोर है उसको कॉपी किया, कॉपी नहीं किया, उसको डुप्लीकेट किया विद डिटेलिंग, और Okay. उसके बाद उसको जाके फेजिंग फेजिंग में न्यू से एग्जिस्टिंग में कर दिया। तो जब मैं एग्जिस्टिंग में गया तो हम्म. वो 3D में तो विजिबल था, लेकिन प्लान उसका विजिबल प्लान्स नहीं में था। आपको विजुअल नहीं था. वो इसलिए हुआ था, मैं बताता जी हूँ क्यों हो रहा है. जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्लान बना लेता हूँ, एक छोटा सा प्लान हम बना लेते हैं कुछ इस तरह का. एंड ओके. सो आप कह रहे हैं कि ये एक आपका यहाँ प्लान है, ये न्यू कंस्ट्रक्शन में बना हुआ था. आप इसे ग्राउंड फ्लोर में बनाना चाहते थे बट आपको ग्राउंड फ्लोर में शो नहीं हो रहा था. तो अगर हम इसे इन सभी वॉल्स को हमने एंड डोर्स को एक साथ सेलेक्ट किया एंड फेस क्रिएटेड अगर हमने इसे एग्जिस्टिंग में डाल दिया एंड नाउ इफ यू गो टू द ग्राउंड फ्लोर एज यू कैन सी ये हमारे पास विजुअलाइज हो रहा है. बट आपका अगर विजुअलाइज नहीं हो रहा था वो इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि आप यहाँ पे फेस फिल्टर में आपने कुछ गलत सेलेक्ट किया हुआ. सो वी आर गोइंग टू मेक आवर ओन फिल्टर्स फिर से. एंड इन फेस फिल्टर में हम क्या करेंगे, एक एग्जिस्टिंग, दूसरी हमारी आएगी डेमो और तीसरी हमारी आ जाएगी न्यू. ठीक है. उसके बाद हमें क्या करना है. अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर हम एग्जिस्टिंग में कुछ बना रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग में अगर हम कुछ भी बनाते हैं तो वो इस फेज में रेविट को पता नहीं है कि ये फेज कौन सी है. उसने उसे हमने डिफाइन किया है. ठीक है. तो अगर आप एग्जिस्टिंग में कुछ भी बनाते हैं तो वो उसके लिए न्यू होती है. ठीक है. और अगर आप जैसे डेमो में बनाते हैं उसे लगता है कि आपने उसे पिछले फेज में बनाया. सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है बट मैं ट्राई करता हूँ समझाने की आपको. सो नाउ वी हैव दिस थ्री फेजेस. ठीक है. तो अगर हम जैसे कि हम कहते हैं कि हम नॉट डिस्प्लेट करते हैं इसे, ये हमारी एग्जिस्टिंग आ गई, हम न्यू चीज़ों को इसमें डिस्प्ले नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, आपने यहीं पे एक गलती की होगी मे बी. दैट इज यहाँ पे हमने नॉट नॉट डिस्प्लेट किया होगा. आप अगर यहाँ पे बाई कैटेगरी कर देते हैं देन इट विल वर्क. ठीक है. आप एक बार अपनी टेम्पलेट में चेक करें कि आपने यहाँ बाई कैटेगरी रखा है या नॉट डिस्प्ले रखा है. सो अगर आप इसे बाई कैटेगरी या फिर ओवर रिडन कर देते हैं तो इट विल शो इट इन योर प्रोजेक्ट. आप एक बार करके उसे देखें. ओके, मैं ये चेक कर लूंगा, लेकिन ये हाँ. फेजिंग वाली ऑप्शन में मैं नहीं गया, इसकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट ही है जैसे पहले से है। ओके. डिफ़ॉल्ट वाली अगर आप यूज़ कर रहे हैं देन यू हैव टू यूज़ इधर शो ऑल और शो कंप्लीट. शो कंप्लीट में आपको एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करना होगा एंड देन शो कंप्लीट करना होगा. अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस एग्जिस्टिंग एंड हियर यू कैन इधर चूज शो कंप्लीट और शो ऑल. अगर मैं यहाँ शो कंप्लीट भी चूज करता हूँ देन ऑल्सो इट इज़ गोना शो अस एज यू कैन सी. ठीक है. ओके एंड ओके, मैं ट्राई करूंगा। ओके, आप ट्राई करके देखें. नहीं होता है आप अपने टेम्पलेट मुझे भेज दें, मैं एक बार देख के आपको बता दूंगा. ठीक है. And here we have to ओके सर। okay, so now we have all these three colors that we have applied and हमें अभी फेस फिल्टर फिर से देखना है. सो फेस फिल्टर में हमने क्या किया है कि एग्जिस्टिंग की जो चीज़ें हैं उसे बाई कैटेगरी रख सकते हैं या फिर ओवररिडन रख सकते हैं बट इट विल शो इन दिस कलर ओनली. ये हमने अभी यहाँ पे ग्रे कलर दिया एग्जिस्टिंग के लिए बट ये ग्रे कलर में शो नहीं करेगा क्योंकि हम जो भी चीज़ें एग्जिस्टिंग में बनाते हैं उसे लगता है कि हम उसे न्यू कंस्ट्रक्शन बना मतलब कि वो फेज में जो बना रहे हैं उसके लिए वो न्यू चीज़ें बन रही हैं. ठीक है. तो अगर हम मैं अभी अगर आपको दिखाता हूँ पहले इन फेजेस में मैं चेंज कर देता हूँ. सो फॉर द एग्जिस्टिंग वन वी आर गोइंग बाय कैटेगरी. Existing is overridden, you can keep it as by category or overridden, it's your choice. Demolish हम इसमें नहीं दिखाते हैं एंड टेम्पररी हम इसमें नहीं दिखाएंगे. फॉर डेमो हम क्या करेंगे, न्यू जो चीज़ें आएंगी डेमो में वो हम ओवरराइड करेंगे. कौन से कलर से, दैट इज दिस रेड कलर. ओके. सो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं. This is not a red, this is what we call brown color or something. So डेमो में हम इसे कर देंगे ओवररिडन. इससे क्या होगा, हम कुछ भी बनाएंगे तो वो इस कलर में शो करेगा. ठीक है. एग्जिस्टिंग हम चाहते हैं अगर आप ओवररिडन करेंगे
तो आपको इस कलर ग्रे कलर में शो होगा, ठीक है, जो कि हमने डिफाइन किया है। अगर आप इसे बाई कैटेगरी रखते हैं तो इट विल शो यू टू यू इन वाइट कलर। ये ओ शिट, फेस फिल्टर, दिस इज existing is by category, not displayed, not displayed. Okay, demo में new is overridden, existing is overridden and demolish is overridden, and new phase में हम new चीज़ों को override करके दिखाएंगे। existing चीज़ को भी अगर आप इस कलर में शो करना चाहते हैं ग्रे कलर में, then you will have to override it if you want. Either you can go for by category also, and then we have this demolish जो कि हमें बिल्कुल नहीं दिखानी है, so not displayed and apply। अब क्या होगा, जैसे कि हमने ये प्लान बनाया, ठीक है, सो एज यू कैन सी यहाँ पे इसकी जो इनफिल कलर है यहाँ पे हमें शो नहीं हो रही है, ठीक है, बट अगर हम डेमो में जाएं तो यू कैन सी कि हमने जो कलर ओवरराइट करवाया है इसे वो शो हो रहा है। अगर हम इसे ओवरराइट की जगह फेस फिल्टर में जाते हैं एंड इंस्टेड ऑफ दिस ओवरराइट अगर हम इसे बाई कैटेगरी कर देते हैं, ठीक है, एंड अप्लाई एंड नाउ वेयर इज दैट एग्जिस्टिंग डेमो बाई कैटेगरी। ओके, सो हमने यहाँ पे जो भी कलर अप्लाई किया है वो शो होगा, बट ये सेम चीज़ अगर हम जाते हैं एग्जिस्टिंग फेज में तो यहाँ पे ओवर रिडन भी अगर हम कर देते हैं, कहाँ गई हमारी एग्जिस्टिंग ओवर रिडन, शो इसे ये कलर शो करना चाहिए था बट ये नहीं करता क्योंकि ये सभी चीज़ों को मान रहा है कि हमने यहाँ पे इस फेज में बनाया है, इसके लिए इस फेज में एग्जिस्टिंग फेज में ये सारी चीज़ें न्यू है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास दो फेजेस डिफाइंड है, दैट इज न्यू एंड डेमो, उसमें हमारी जो कलर्स हैं वो शो होंगी, ठीक है। तो इन केस यू वांट कि इसमें भी आपकी जो कलर्स है वो इनफिल कलर जो है हमारी वॉल्स की वो कुछ इस तरह से नजर आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इधर यू कैन जस्ट गो टू व्यू, विजिबिलिटी ग्राफिक्स, मैनेज, ठीक है, हमें स्केल हमेशा 1:50 रखनी होती है, यू कैन जस्ट कीप इट एज 1:50 एंड यहाँ पे ओवरराइड मॉडल में आप जाएं एंड यहाँ वॉल्स में जो है आप यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हैं टू योर ओन कलर, सो हम यहाँ पे इसे ग्रे में ओवरराइड करा देते हैं एंड ओके एंड ओके एंड ओके एंड डन। ओके, नॉट येट डन, जस्ट अ सेकेंड, अप्लाई फ्रॉम टेम्पलेट। ओके ओके ओके, सो हमें क्या करना था, apply from this we have changed the color of it, okay, so we have to again change this color to this एंड यहाँ पैटर्न में जाके सॉलिड फिल सेलेक्ट करके ओके ओके ओके, अप्लाई प्रॉपर्टीज एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। आप इसमें कोई भी चेंजेस करके देख सकते हैं एंड फिर हमें और क्या करना था, लास्ट डे हमने क्या क्या गड़बड़ की थी हमें उसे सही करना है, सो फॉर दैट सो ये हो गई हमारी टेम्पलेट। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हम कुछ चीज़ें डिमोलिश करते हैं फिर से, पहले मैं ओल्ड कंस्ट्रक्शन में एक और दो चीज़ें बना देता हूँ ताकि हम उसे डिमोलिश कर सकें। सो नाउ आई वांट कि इस वॉल को हम डिमोलिश करते हैं एंड वी क्रिएट अ न्यू वॉल ओवर हियर। सो डेमो में जाते हैं हम, यहाँ पे हम अपनी टूल यूज़ करेंगे दैट इज दिस डिमोलिश टूल, यू कैन जस्ट डिमोलिश दिस वन wall, so we are going to create a new wall and now you can see कि ये जो wall बनेगी, okay, this is not defined by its color, so इसके लिए हमें क्या करना होगा, instead of show all हमें कहाँ जब पे जाना होगा, ये हमारी demo phase है, so you have to select this demo and now you can see, so in demo हमारी जो colors है वो कहाँ गई manage phases, override, existing, ओके एंड नाउ यू कैन सी ये जो मैं कह रहा था कि ये हमने यहाँ पे बाई कैटेगरी किया है, इसलिए ये जो पार्ट है एज यू कैन सी ये ओवर रीडन के लिए ये कलर हमने इसे प्रोवाइड किया हुआ है, हम जिस भी चीज़ को ओवर राइट करा रहे हैं वहाँ पे कलर शो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर आप देखें न्यू में तो हमने इसे ओवर राइट कराया, इसे ओवर राइट कराया, इसलिए ये दो कलर शो हो रही है, ठीक है। और इसमें अभी डेमो में मैंने थोड़ी देर पहले ये बाई कैटेगरी में इसे चेंज किया था, ठीक है, तो इसलिए बाई कैटेगरी में ये वाइट रहेगा जो कि डिफ़ॉल्ट इसकी कलर है, बट अगर आप इससे चाहते हैं कि ये ग्रे कलर में शो हो, यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर, ओवरराइड, अप्लाई एंड नाउ यू कैन सी कि हम जो चीज़ें बनाना चाहते हैं वो बन रही है। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड अ डोर ओवर हियर and then one or two window in existing phase, then we have to demolish that window
So let's just get some windows. 1 2 3. Okay, so now what we have to do is we have demolished this one, and now you can see the new phase. Now you can see कि new phase में जो हमारी colors है वो यहाँ show नहीं हो रही है. Then for that we have to again overwrite this color. So new में हमारी colors तो overridden show हो रही है. Still it is not showing. Okay, it is not showing because हमने यहाँ पे face filter में change नहीं किया. So face filter is new, and new construction instead, if I keep it at demo, it is gonna work out. If we keep it at new construction and then new, it is not working. Okay, फेस फिल्टर न्यू में हमने और न्यू चीज़ों को, अच्छा वो इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि अगर हम ये जो चीज़ें बना रहे हैं ये डेमो में बन रही है, ये डेमो के बाद वाली फेज़ है. ठीक है, तो अगर आप कुछ भी चीज़ न्यू कंस्ट्रक्शन करते हैं इस फेज़ में, अगर आप करते हैं दैट इज़ न्यू, तो ये आपको कलर शो होंगी. ठीक है, ये देखें. बट अगर हम डेमो में इसी चीज़ को बनाते हैं तो आपको यहाँ न्यू चीज़ों में कलर शो होंगी. बट अगर आप इसमें जाते हैं तो ये देखें, इस वॉल को अभी हमने बनाया, ये चीज़ें यहाँ पे इसमें कलर में शो हो रही है एज यू कैन सी. बट अगर हम न्यू में जाते हैं तो ये चीज़ हमें बाई कैटेगरी में शो हो रही है. ठीक है, सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो. तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सिर्फ 2 फेज़ यूज़ करता हूँ. ठीक है, वो मैं थोड़ी देर बाद चल के बताऊँगा कि हम 2 फेज़ में कैसे काम करते हैं. 3 की जगह, मतलब फेज़ हमारी 3 ही रहेगी, बट वी जस्ट हैव दिस ऑप्शन एज 2 ओवर हियर. दिस 2 जैसे कि एग्जिस्टिंग एंड न्यू कंस्ट्रक्शन रहेंगी. दिस डेमो इज नॉट गोना बी पार्ट ऑफ आवर प्लान. ठीक है, उसके बाद हमें उस दिन हमने देखा था कि हम जब विंडो को डिमोलिश कर रहे थे तो यहाँ कलर शो नहीं हो रही थी. एज यू कैन सी यहाँ पे तो कलर शो हो जा रही है. ओके, वी हैव टू डिमोलिश इन द डेमो वर्जन. सो हम डेमो में गए, डिमोलिश सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने इसे डिमोलिश कर दिया. So we made it in demo only, that is why it is shown us as temporary file. So हम इसे undo करते हैं. Select this all window. SA is the shortcut to select all. Phase created existing. Okay, it is in existing phase. हम है demo phase पे. अगर हम यहाँ पे demolition करते हैं and go to new phase, as you can see यहाँ पे जो wall है यहाँ color show होनी चाहिए थे but नहीं हो रही है. ठीक है, and यहाँ पे हमारा जो wall है ये fill up हो जाना चाहिए था, ये fill up भी नहीं show हो रहा है. Okay, let's just check. Overridden. Fine. Okay, just go to override. Okay, let's just check it in 3D actually क्या हो रहा है हमारे साथ. So हमने इसे रखना है लेवल फर्स्ट. ओके, सो कंप्लीट की जगह हमें जाना है शो डेमो, एंड हमारी जो फेज है डेमो फेज, इसे हमें शो कराना है. सो इट इज shown to us in this line colors. हमने शायद लाइन की कलर्स चेंज नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पे ये ब्लैक में शो हो रहा है. एज यू कैन सी हमने यहाँ पे इन लाइन्स की कलर चेंज नहीं किया. सो वी हैव टू चेंज इट. सो एज यू कैन रिमेम्बर हमारी कलर क्या थी, मुझे भी याद नहीं रहता, कभी कभी मुझे देखना पड़ेगा. सो दिस इज द डिमोलिशन फेज 211, 86 and then it is 54 again. Okay, this is for the other one, I think 211, 157, 157, and this is 9. Okay, now we have the color again, demo, and this is the demo phase only. So again we have to choose 211, 157 and 9, and okay and just apply it. And now you can see ये जो चीज़ें हैं हमें कलर में शो हो रही है, that is दिस येलो कलर. एज यू कैन सी यहाँ पे भी हमें येलो कलर में कलर शो हो रही है. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे न्यू में कर देते हैं इसकी जो कलर स्कीम है, दैट इज 155, 86 एंड 54. ओके, एंड अगेन instead of black 155, 86, 54. ओके, अप्लाई. ठीक है, अब देखें हमने इस वॉल को न्यू कंस्ट्रक्शन बनाया,
तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो कलर शो हो रही है वो ऑरेंज हो रही है। बट अगर आप यहाँ से जाते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन फेज में एंड देन ये हमारी जो है जा रही है कहाँ तक, फर्स्ट फ्लोर तक। सो एज यू कैन सी ये हमने न्यू बनाया है। एंड उस दिन हमें जो यहाँ पे कलर शो नहीं हो रही थी, दैट इज़ फॉर द विंडो जो हमने डिमोलिश किया है विंडो। मैं एक आध विंडो और डिमोलिश कर देता हूँ, जिससे कि हम या फिर सारी ही विंडोज हम डिमोलिश कर देते हैं। ओके, आई हैव जस्ट डिमोलिश ऑल द विंडोज। एज यू कैन सी हमारी कलर्स भी सही शो हो रही है अभी। गो टू 3D में आप यहाँ पे देखें आप कौन से कंस्ट्रक्शन व्यू में है। सो एज यू कैन सी हमें यहाँ पे कलर शो नहीं हो रही है। बट अगर आप यहाँ पे शेडेड व्यू में जाएं या फिर कंसिस्टेंट कलर, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, यहाँ जहाँ पे भी हमारी विंडोज थी उसमें अगर हमें कलर्स दिखानी है तो सबसे पहले हम हिडन लाइंस में कोई भी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। मतलब कि अगर आप 3D में किसी चीज़ को आपने डिमोलिश किया है तो आपको यहाँ पे उस तरह से शो नहीं होंगे। उसके लिए आपको कलर सेट करना होगा। सो उसके लिए आपको फिर से फेजेस में जाना होगा, देन अगेन गो टू ग्राफिक ओवरराइड, और यहाँ पे अब हमें फेज में काम करना होगा, दैट इज द न्यू कंस्ट्रक्शन। इसमें हमारी जो कलर्स है उसे आपको सेट करना होगा। सो यू कैन जस्ट यूज द रेंडर अपीयरेंस। ठीक है, पहले हम इसकी कलर कर देते हैं, दैट इज अगेन 155, उसके बाद 86 एंड 54। ओके, शो द रेंडर अपीयरेंस। ओके, इट इज शोन इन ब्लैक। ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ इस, आपको अपीयरेंस में जाके एक्चुअली इसकी जो कलर है वो चेंज करनी होगी। सो 155, 86 एंड 54, डन। अप्लाई ग्राफिक, यूज रेंडर अपीयरेंस। अगर हम रेंडर अपीयरेंस यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, ओके, ऑल ऑफ आवर मटेरियल हैज बीन चेंज टू दिस कलर एक्चुअली। अब हमें क्या करना होगा, हमें इस रेंडर का भी एक डुप्लीकेट बनाना होगा उसके लिए। सो वी हैव टू कैंसिल इट फर्स्ट, अगेन गो टू न्यू, यूज रेंडर अपीयरेंस। अपीयरेंस ये था हमारा पहले ग्रे में, वी जस्ट पुट इट बैक टू ग्रे, अप्लाई फॉर एवरी फेस। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक और अंडू करने दें। फेस, फिल्टर, ग्राफिक ओवरराइड, न्यू। ओके, नाउ वी हैव डिफॉल्ट कलर, मैंने इसे अंडू किया है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ पे फेजेस में जाएंगे, यू कैन जस्ट डुप्लीकेट इट एंड राइट इट एज न्यू फेस। ठीक है, ये हमने खुद से अपनी कलर प्रोवाइड करने के लिए आपको ऐसा करना होगा। एंड देन इन अपीयरेंस यू कैन जस्ट गो टू एंड हियर, एंड यहाँ पे भी आपको डुप्लीकेट करना होगा क्योंकि ये तीनों फेज एक दूसरे एक ही कलर को यूज कर रहे थे। सो हमें यहाँ अपीयरेंस में भी चेंज करना होगा। नाउ इफ वी चेंज द कलर ऑफ दिस अपीयरेंस, सो यहाँ पे मैं करता हूँ 155, 86 एंड 54, डन। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ यूज रेंडर अपीयरेंस, अप्लाई, अप्लाई, अप्लाई। ओके, नाउ यू कैन सी कि हमने यहाँ पे जो वॉल बनाई है वो यहाँ कलर में शो हो रही है। इफ आई गो टू न्यू कंस्ट्रक्शन की जगह अगर हम डेमो में जाते हैं, नाउ यू कैन सी द कलर्स ऑफ इट, जो डिमोलिश हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आपको इन चीज़ों की कलर्स देखनी है इन डिफ़ॉल्ट, तो हमें यहाँ पे जो हमारे पास एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, ये जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फेज है, आप एग्जिस्टिंग में जाके, अभी मैंने आपको कहा ये ग्रे कलर की होगी। सो आप यहाँ पे जाएं, इसे डुप्लीकेट करें, अपीयरेंस को डुप्लीकेट करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी आप जो भी कलर इसमें शो कराना चाहते हैं। ठीक है, मैं एक और बार आपको करके दिखा देता हूँ। एग्जिस्टिंग की अगर आपको कलर चेंज करनी है, फर्स्ट डुप्लीकेट दी एग्जिस्टिंग, देन राइट योर ओन नेम, एग्जिस्टिंग। ओके, आप इसके नंबर के आगे अगर आप 1 लगा देते हैं या 2 लगा देते हैं, कुछ भी आप अगर नंबर देते हैं एंड जस्ट प्रेस ओके, तो ये टॉप पे चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको अपीयरेंस को जस्ट रिमेंबर कि आप कभी भी अगर यहाँ पे कोई चीज़ डुप्लीकेट करें तो अपीयरेंस को जरूर डुप्लीकेट कर लें। ठीक है, अगर सभी चीज़ों की कलर एक जैसी है तो आपको मतलब सभी चीज़ों में चेंज हो जाएगी, हमारी साइज फेज में चेंज हो जाती है अगर आप अपीयरेंस की कलर चेंज नहीं करते हैं तो। सो आई वांट टू कीप इट एज वाइट, go to graphic, use render appearance, apply, apply, apply। ओके, नाउ यू कैन सी हमारी यहाँ पे जो वॉल फिल हुई है ये कलर यहाँ पे शो हो रही है। सो उस दिन मुझे यही याद नहीं आ रहा था कि ये अगर हम हिडन लाइंस में जाते हैं तो इट विल जस्ट शो इट एज नॉर्मल। ठीक है, बट
यहाँ पे अगर हम अपनी जो कलर हमने सेट किया अगर आप उसमें जाते हैं तो ये यहाँ शो होगी, बट इन न्यू कंस्ट्रक्शन फेज यू जस्ट हैव टू शो इन ऑन योर प्लान्स। ठीक है, अगर आप प्लान्स पे जाते हैं तो आपको ये सिर्फ प्लान्स पे दिखानी है कि क्या चीज़ें टूट रही हैं एंड क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपकी प्लान्स 3D प्लान में शो क्यों नहीं हो रही है या दिस टाइप। सो अगर मैं यहाँ पे अगेन हिडन लाइन में जाता हूँ एंड go to new construction and here also I go to new and now you can see हमारे पास न्यू कंस्ट्रक्शन में वही चीज़ें शो होती हैं जो कि हमने नया कंस्ट्रक्ट किया है, एंड अगर हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ इनफिल की है तो वो कलर शो नहीं होती है। ठीक है, एंड अगर आपको कलर शो करानी है यू कैन जस्ट गो टू द कंसिस्टेंट कलर एंड यहाँ पे आपको जाना होगा डेमो फेज में, यहाँ पे भी आपको जाना होगा डेमो फेज में एंड नाउ यू कैन सी इट आउट। ठीक है, सो इसके बाद अब मैं कह रहा था कि मैं 3 फेज में काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 2 फेज में काम करता हूँ। ठीक है, एंड हमने यहाँ पे 3 फेज बनाए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ ये जो डेमो वाली फेज हमने बनाई है ये न्यू कंस्ट्रक्शन के साथ एडजस्ट कर ले खुद को। ठीक है, क्योंकि डेमो फेज हमारी जो बनी है वो एग्जिस्टिंग के बाद है एंड वी वांट कि हम डेमो और न्यू कंस्ट्रक्शन एक ही में दिखाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट वॉच कि अब क्या होगा। यहाँ पे अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग है, डेमो है, न्यू कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, मैं अगर आप यहाँ बिफोर कर देते हैं तो ये एग्जिस्टिंग के साथ डेमो अटैच हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे ओके नॉट नॉट दिस वन, नॉट इंसर्ट वन, दिस कंबाइन विथ। ठीक है, अगर आप यहाँ प्रीवियस करते हैं तो एग्जिस्टिंग के साथ कंबाइन हो जाएगा, अगर आप न्यू कंस्ट्रक्शन के साथ करते हैं तो ये न्यू कंस्ट्रक्शन के साथ कंबाइन हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, लेट मी हैव सम वाटर। ओके, सो मैं जो करता हूँ वो यही करता हूँ कि डेमो और न्यू कंस्ट्रक्शन को एक साथ रखता हूँ हमेशा। सो आई कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर एज नेक्स्ट, एंड आप याद रखें कि अगर आपने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर दिया देन यू डोंट हैव एनी चांस ऑफ गेटिंग इट बैक। अगर आप इसे अंडू नहीं करते हैं तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इसे वापस लाने के लिए। ठीक है, तो बट इट इज़ वन टाइम थिंग। अगर आपने सभी टेम्पलेट, अगर आपकी सभी चीज़ें एक जैसी सेट हो गई है, सब कुछ सही है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। सो हम यहाँ पे डेमो में जाते हैं एंड नेक्स्ट पे करते हैं। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास 2 फेज आ गई हैं एंड नाउ हियर एज यू कैन सी कि न्यू कंस्ट्रक्शन जो है हमारी इसमें आ गया, जो हमारा डेमो था फर्स्ट फ्लोर का डेमो एंड जो न्यू था सब एक में आ गया। ठीक है, जस्ट अप्लाई, प्रेस ओके एंड नाउ यू हैव इट। सो अगर अब हम देखें तो यहाँ पे अब जिस तरह से मैं कह रहा था कि अब हम अगर यहाँ पे कुछ भी करते हैं इनफिल से आपको जो भी दिखाना है या जो भी, तो अब आपको यहाँ पे हम जाते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन का न्यू में। सो नाउ यू कैन सी दिस इज शोन एज न्यू फिल। यहाँ पे हमें सभी चीजें शो होंगी। अगर हम 3 फेज बनाते हैं तो ये चीजें जो यहाँ 3D में शो हो रही हैं वो वहाँ पे नहीं हो रही थी। ठीक है, इसके बाद वी आर इन हिडन लाइन एंड इट इज वो शो नहीं होगी जो मैंने आपको कहा था, जो जो भी हमने इनफिल किया उसके लिए आपको कंसिस्टेंट कलर में रखना होगा इसे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सो नाउ अब अगर आप देखें तो ये जो हमारी जो कलर्स थी जो एक डेमो में शो हो रही थी, एक न्यू कंस्ट्रक्शन में शो हो रही थी, अगर अब हम कुछ भी डेमो बनाते हैं तो वो न्यू कंस्ट्रक्शन में आराम से शो होंगी। सो लेट्स जस्ट मेक एज यू कैन सी अभी हम डेमो में हैं। ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर आप अपनी प्लान को ठीक से सेट कर लें। सो नाउ जस्ट वी हैव 2 फेजेस दैट इज एग्जिस्टिंग एंड न्यू कंस्ट्रक्शन। सो हमने न्यू कंस्ट्रक्शन रखा है एंड फेज फिल्टर में हमने डेमो सेलेक्ट कर लिया है। सो नाउ इट इज इजियर फॉर अस, सिर्फ हमें 2 चीजें देखनी, दैट इज फेज, इसमें 2 है, और फेज फिल्टर इसमें 3 चीजें हैं, दैट इज डेमो, एग्जिस्टिंग एंड न्यू। अब हमें सिर्फ इतना ही देखना है। सो अब हम अगर कुछ भी डेमो में बनाते हैं या फिर कुछ भी डिमोलिश करते हैं तो हम एक काम करते हैं, मैं एक आध 2 चीजें और बना देता हूँ एग्जिस्टिंग फेज में। फॉर एग्जांपल मैं यह चाहता हूँ यहाँ पे एक WC जैसा कुछ बन जाए, दैट इज आवर वाटर क्लोजेट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक कबर्ड हो, समथिंग लाइक दिस। okay, we don't want a window here, windows here, and then a door, a small door, you can keep it over here, you can just give the room। okay, room बनाने से पहले आप यहाँ पे एक फ्लोर दे दें, मैंने फ्लोर नहीं दिया यहाँ पे, so I'm just giving it a floor, finish। ठीक है, अब हम यहाँ पे रूम बनाते हैं एंड दिस इज अ रूम। इसकी हमें डायमेंशन दिखानी है तो एरिया दिखा देंगे, 9 कैन सी ये 3 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और ये वाली रूम जो है ये है हमारी रूम विथ एरिया, यू कैन गो फॉर, नाउ यू कैन सी ये 12 मीटर स्क्वायर दिखा रही है। ठीक है, तो हम डेमो में जाते हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ओके, सो दिस वॉल इज ऑलरेडी डिमोलिस्ड, हम इसे वापस ले आते हैं।
सो इनकेस आपने कुछ डिमोलिश कर दिया उसे वापस लाना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो हमारे पास फेस डिमोलिश्ड है, इंस्टेड ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन यू कैन जस्ट कीप इट टू नन, एंड ये हमारी वॉल वापस आ गई है, ये कहीं भी डिमोलिश नहीं हुई है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिमोलिश दिस वॉल, ठीक है। तो हम इसे जैसे ही डिमोलिश करते हैं, नाउ यू कैन सी कि ये इसके साथ, अगर मैं एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर हमें सिर्फ डोर डिमोलिश करनी है तो आपको इसे हथौड़े को पकड़ना है, दैट इज अवर हैमर, डिमोलिश इट, एंड नाउ यू कैन सी कि ये जैसे डिमोलिश होता है, रेबिट सोचता है कि यहाँ पे अगर वॉल हट गई है तो हमें यहाँ पे इस चीज़ को अब फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। बट इन केस आपको चाहिए कि, मैंने इसे हटा दिया, नाउ यू वांट कि ये सिर्फ ये जो पार्ट है ये डिमोलिश तो हो जाए, बट इसमें ओपनिंग आप चाहते हैं, देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट गो फॉर SL, दैट इज स्लाइस, रिमूव इट, एंड देन ट्राई टू डिमोलिश दिस वॉल। एक्चुअली हमें इस वॉल को डिमोलिश करनी होगी जो हमने अभी ये किया है। सो दिस इज दैट पार्ट। नाउ यू कैन सी ये जो अभी हमने डिमोलिश किया इसमें इनफिल नहीं हुए, ठीक है, मतलब ये चीज़ें यहाँ फिल नहीं हुई। अगर हम 3D में भी देखें तो वहाँ पे, ओके जस्ट अ सेकेंड, सेलेक्ट ऑल, ओके नॉट दिस वन, सेलेक्ट दिस वॉल्स। सो नाउ वी हैव टू ऑल्सो सेट, एक बार हम इसे सेट कर लेंगे तो हमें बार बार इसे सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप टेम्पलेट में सही सभी चीज़ें सही से सेट कर लेते हैं तो। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो वॉल है ये पूरी तरह से वॉल हट चुकी है, ठीक है। हमने यहाँ डोर हटाया बट यहाँ पे ये फिलअप नहीं हुई है। अगर आपको फिलअप करना है, आई एम जस्ट अनडूइंग इट, या तो हमने इसे अंडू कर लिया, एंड देन डिमोलिश इट, जस्ट डिमोलिश द वॉल। नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आ गई है, दैट इज द न्यू वॉल। आप 3D में जाएं, यहाँ नाउ यू कैन सी ये इनफिल हो चुकी है, एंड यू अगेन हैव टू सेलेक्ट ऑल दिस थिंग्स, गो टू लेवल 2। एक्चुअली हम जब भी वॉल्स बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है, अगर हम यहाँ पे कोई भी वॉल बना रहे हैं तो अब बनाने से पहले इसकी हाइट जो है उसे पहले सेट कर लें। सो अगर आप यहाँ फर्स्ट फ्लोर कर देते हैं, अगर अब हम कुछ भी बनाते हैं तो ये फर्स्ट फ्लोर तक ही जाएगी, ठीक है। So okay, let me just keep it, remove it, okay done. So now you can see कि हमने यहाँ पे जो यहाँ पे डिमोलिशन की, सिर्फ यहाँ पे डोर डिमोलिश हुई, ऊपर वाली पार्ट डिमोलिश नहीं हुई, और ये वॉल यहाँ पे इनफिल हो चुकी है, ठीक है। सेलेक्ट दिस, कीप इट अप टू फर्स्ट फ्लोर, डन। ओके, सो इसके बाद अब हमें क्या करना था, यस आपको मुझे एक और बार कलर्स शो करने थे कि कैसे कैसे कलर्स बन रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी अगर हम यहाँ पे कुछ भी न्यू बनाते हैं, सो यहाँ पे हमने एक रूम बनाया, गिव अ डोर, एंड नाउ यू कैन सी ये सभी चीज़ें न्यू कलर में शो हो रही हैं। यू कैन ऑल्सो अप्लाई अ डोर ओवर हियर। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो डिमोलिशन हुई है, जो न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है, दोनों एक ही ड्राइंग्स में बहुत अच्छे तरीके से दिखा रही है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं न्यू में, नाउ यू कैन सी कहाँ चीज़ें इनफिल हुई हैं, कहाँ चीज़ें यहाँ पे हटी हैं। सो यहाँ पे वी हैव एडेड अ वॉल, लेकिन ये वॉल अगर आपको देखना है यहाँ पे डिमोलिशन हुई है या नहीं, तो यहाँ पे देखें ये पार्ट यहाँ पे थोड़ी सी डिमोलिश हुई है वॉल को लगाने के लिए, आई मीन डोर को लगाने के लिए। और यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो ये आपको वहाँ पे डिमोलिशन की चीज़ें नहीं दिखाएगा, न्यू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो होप कि आज आप लोगों को थोड़ी समझ में आई होगी कि ये क्यों हो रही है सभी चीज़ें, एंड हाँ कन्फ्यूज़न सबको होगी। सो इन केस आपको कन्फ्यूज़न होती है आप फिर से इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, सो नाउ वी हैव दिस प्लान, वी आर गोइंग टू डू इट एज हिडन लाइंस। अब हमें डायमेंशंस, सो एज यू कैन सी हमारी जो डायमेंशन आ रही है मिडिल टू मिडिल आ रही है, हमें चाहिए कहाँ, फेस से फेस तक, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले किसी सेशन में बताया था कि हम अगर वॉल से वॉल की डायमेंशन लेना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एनीवन? हाँ, वॉल फेसेस सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे वॉल फेसेस सेलेक्ट किया, नाउ यू कैन सी ये हमारे पास जो डायमेंशन है ये आ रही है, बट इट लुक्स अगली, ठीक है। सो इतनी लंबी लंबी लाइंस जो है हमारे पास, ये जो आपको शो हो रही है, हम जहाँ तक इसे लेकर जाएंगे ये वहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होती हैं। सो उसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स में चेंज करने होंगे डायमेंशंस की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट सेलेक्ट योर डायमेंशन वंस, ठीक है। और हाँ, अब जैसे कि हमने वॉल फेसेस सेलेक्ट कर दिया, नाउ इफ यू गो फॉर द डायमेंशन, नाउ यू कैन सी कि आप जब भी डायमेंशन लेंगे तो ये इनर वॉल टू इनर वॉल ही आएगा, इसके लिए हमें दिक्कत नहीं है। सेंटर लाइन से पहले आ रहा था वो नहीं आएगा, ठीक है। नाउ वी हैव सेलेक्टेड दिस एंड वी आर गोइंग टू डू सम चेंजेस टू इट, ठीक है।
सो यहाँ पे हम डायमेंशन लाइन कंटिन्यूअस रखेंगे। लीडर टाइप आप चाहे तो आर्क रख सकते हैं या फिर यू कैन गो फॉर लीनियर। इससे क्या होता है लीडर टाइप से, ओके। सो ये जो हम हमारे पास ये है, एज यू कैन सी, ये जो हम मूव करा रहे हैं तो ये एक आर्क में मूव हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे जाए, इसे अगर आप लाइन में कर देते हैं, अप्लाई इट, क्लिक ओके, एंड नाउ यू कैन सी कि ये लाइंस में आ रही है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट कीप इट टू आर्क ओनली, ठीक है। मैंने अंडू किया, ये आर्क पे ही आ गई। नाउ सेलेक्टेड, गो टू एडिट। इसके बाद हमें क्या करना है, लीडर टिक मार्क, शुड वी कीप इट, leader tick mark, I don't remember what was it, so let's just not keep it. Then always from origin is okay. Here the tick mark is diagonal 3 millimeter, so I don't want any of the tick mark, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी कोई भी जो टिक मार्क है वो नहीं रहेंगी। जस्ट अ सेकेंड, ओके। मैं इन सभी को एक साथ ही चेंज कर देता हूँ। टिक मार्क हमें नहीं लगाना है। टिक मार्क की वैल्यू जो है लेट बी इट एट 1। लाइन की जो वेट है हमारे पास उसे हम कर देते हैं 5। देन टिक मार्क लाइन, डायमेंशन ऑफ एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। इसे अगर हम चेंज करते हैं 0.300, so it is like 3 millimeter I think, so it doesn't change anything। अगर हम ये जो गैप विथ एलिमेंट है इन विटलेस लाइन को चेंज करें टू फिक्स्ड लाइन, ओके नाउ यू कैन सी ये अब थोड़ी जो हमने डायमेंशन बनाई है, ये अगर हम विटनेस लाइन में चेंज करते हैं तो नाउ यू कैन सी कि ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक लाइन आ रही थी, नाउ वी जस्ट हैव अ स्मॉल लाइन ओवर हियर। वी कैन आल्सो चेंज द लेंथ ऑफ दिस लाइंस, सो एंड उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगेन सेलेक्टेड, गो टू this one, and here we have the witness line length, इसे हम 1 कर देते हैं, and इसकी जो एक्सटेंशन है उसे भी 1 मिलीमीटर कर देते हैं, ठीक है। ओके, और you can just go for lesser, so let me just keep it at 0.7। उसके बाद these are none solid dynamic, okay, we don't have to make any changes over here। and दिस प्लेस टेक्स्ट साइज, आप टेक्स्ट की साइज जो भी रखना चाहते हैं, सो लेट मी पुट इट एट 2 मिलीमीटर, एंड दिस इज ऑल राइट। एंड अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट की जो फॉन्ट है हमारे पास, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप उसकी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं कि वो कैसी दिखेगी हमें। देन यू कैन ऑल्सो चेंज कि वो ओपेक होगी या ट्रांसपेरेंट होगी, बट कीप इट टू ओपेक, बिकॉज इससे क्या होता है कि जैसे अगर हमने यहाँ पे कोई डायमेंशन लगाई है, हम इसके ऊपर जाते हैं तो ये एक वाइट लाइन बन जाती है। अगर आप इसे ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो ये आपको पीछे वॉल भी शो करेगा। सो कहाँ गया वो, दिस इज हियर, यू कैन जस्ट कीप इट एज ट्रांसपेरेंट। नाउ यू कैन सी कि ये इसके अंदर शो होगा। सो कभी कभी हमें देखने में इसे प्रॉब्लम हो जाता है, सो वी आर गोइंग टू कीप इट एट ओपेक। इट इज अपॉन यू कि आप इसे कैसा रखना चाहते हैं। अप्लाई, ओके ओके, डन, ठीक है। सो ये हो गई हमारी न्यू डायमेंशन लाइंस, ठीक है। इसके बाद मैं सभी लाइंस को सेलेक्ट कर, डायमेंशन सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब हम जो फेजेस पे काम करते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, मैंने अभी हम कौन सी फेज में, नाउ यू कैन सी वी आर इन एग्जिस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन फेज, हम एग्जिस्टिंग फेज में चले जाते हैं और यहाँ पे ये जो न्यू है इसके जगह हम कंप्लीट शो करते हैं। नाउ यू कैन सी कंप्लीट या फिर एग्जिस्टिंग, ठीक है। और अगर आप यहाँ न्यू सेलेक्ट करते हैं, ये चीज़ आपको बतानी जरूरी है। सो ये देखिए, हम जैसे ही एग्जिस्टिंग में जाते हैं एंड यहाँ पे न्यू सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने आपको कहा था एग्जिस्टिंग में हम जो भी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, वो मतलब कि खुद रेविट को ये नहीं पता कि ये कौन से फेज में बना रहा है। ये जिस फेज में भी जो भी चीज़ें, अगर कोई भी चीज़ें न्यू बना रहा है अपनी फेज में, ठीक है, तो उसे ये मानता है कि ये न्यू चीज़ बन रही है उसमें। इसलिए अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमने जैसे ही यहाँ पे ओवरराइट किया है न्यू चीज़ों को, यहाँ पे ये शो कर रहा है सारी चीज़ें हमने जो कलर इसमें प्रोवाइड की थी, दैट इज द ब्राउन कलर। आपको दिख रही है सभी चीज़ें ब्राउन में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो कलर शो हो यहाँ पे न्यू में ये इस तरह ना हो, यू कैन जस्ट गो टू योर एग्जिस्टिंग फेस, नाउ यू कैन सी हमारे पास डिफॉल्ट कलर जो है उसमें आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने इस चीज़ में चेंज किया था, डेट इज द फेज में यहाँ पे हमने एग्जिस्टिंग में न्यू को बाय कैटेगरी रखा था, ठीक है। तो इसे आप याद रखें, एंड किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, आई एम हियर, सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम।
ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ओके, just copy this flow, align to selected level, अब on the level 2 select it, अब मुझे क्या करना होगा, select all the walls, okay, I cannot select all the walls but I can filter it out, so I can just filter all the walls from here, none, wall, okay, and attach top base with this one, done, ठीक है। सो इसके बाद अब हम एक प्लान बनाते हैं एक छोटी सी, उसके बाद हम इस पे एक रूफ बनाएंगे जिसमें हमें रूफ में डिमोलिशन दिखानी होगी। सो मैं बनाने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि हम क्या करना चाहते हैं। ओके, कोई प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने रूफ में डिमोलिशन की हुई है, केली कॉनवे, केली कॉनवे, केली कॉनवे, इफ आई कैन रिमेम्बर, ओके, लेट्स जस्ट चेक इट। ओके, इस वाले रूफ में हमने डिमोलिशन की है, एंड अगर मैं न्यू कंस्ट्रक्शन में जाता हूँ तो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे पूरी रूफ को ही चेंज कर दिया है, ठीक है। और अगर हम इसकी प्लानिंग में जाते हैं, शो कंप्लीट की जगह मैं जाता हूँ सी प्रपोज्ड, एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ न्यू कंस्ट्रक्शन। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो हमने बनाया है, ठीक है, ये हमारा न्यू कंस्ट्रक्शन में बना हुआ है, और पुराने कंस्ट्रक्शन में इसे हमने सो कंप्लीट, इसे हमने यहाँ पे इन चीज़ों को रिमूव किया है, ठीक है। और अगर मैं इस चीज़ को आपको डेमो में दिखाऊं, इज दैट डेमो, डेमो 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 डेमो, सी डेमो, एंड एग्जिस्टिंग की जगह न्यू कंस्ट्रक्शन। ओके, सो अगर आपको यहाँ पे एक येलो लाइन दिख रही होगी, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास पहले एक रूफ हुआ करती थी जिसे हमने डिमोलिश किया, दो वो हमें येलो कलर में यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी रूफ हमने, ये इस पार्ट की रूफ को हमने डिमोलिश किया है। मे बी इट इज़ नॉट क्लियरली विजुअल, एक और मेरे पास प्लान है जिसमें कि इससे भी अच्छी तरह से विजुअलाइज होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो रिवाइट क्लाइंट Kathleen, yes, this one, Kathleen. So new construction and show complete, hidden lines, demo, okay, on this part as you can see कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमारे existing roof, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखिए हमारे पास इस तरह से एग्जिस्टिंग रूफ हुआ करती थी, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्लोप हुआ करती थी, ठीक है। बट हमें क्या करना था कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा पार्ट में हमने एक यहाँ पे रूफ बनाया है, इसी रूफ में ही एक कट किया है, और इस पार्ट को, और ये जो छोटी सी पार्ट है, ठीक है, इसे हमने डिमोलिश किया है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे न्यू कंस्ट्रक्शन में, और ओके, नॉट दिस वन, अंडू एग्जिस्टिंग न्यू टू न्यू कंस्ट्रक्शन, एंड यहाँ पे हम जाएंगे डेमो में। सो यहाँ पे हमने डिमोलिशन की है, यहाँ पे एक छोटी सी डिमोलिशन की है, क्योंकि हमें, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये पार्ट देखें आप, ये देखें यहाँ से आपको अंदर नजर आएगा। अगर मैं इस पार्ट को भी रिमूव करके दिखाऊं, सो नाउ यू कैन सी कि ये जो पार्ट है यहाँ पे, जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे डिमोलिशन हुआ है रूफ में, ठीक है। तो हमें रूफ में कैसे डिमोलिशन करना है ये हम देखेंगे। उसके बाद ये जो पार्ट है ये इनफिल हो गया है, then we have made a door over here, we made a balcony over here, so we can make something like this to our this plan actually। तो इस प्लान में हम ट्राई करेंगे कि इस तरह की एक रूफ बनाते हैं, ठीक है। then we will make a balcony over here and we are going to demolish few things, and now you can see कि ये जो पार्ट है ये भी हमने डिमोलिश किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पार्ट हमने डिमोलिश किया, बट आई डोंट थिंक ये एक दिन में आज पॉसिबल हो पाएगा पूरा। तो हम आज क्या करते हैं, हम इस रूफ को बनाते हैं, इस वॉल्स को बनाते हैं, और यहाँ पे एक छोटी सी प्लान भी होगी हमारे पास। सो दिस इज आवर लॉफ्ट प्लान, यहाँ पे हमारे पास जाने का भी रास्ता है, ओके। सो लेट मी चेक कि हमें इसमें क्या क्या करना होगा। So we have one floor, we have the second floor, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 फ्लोर रखते हैं, and then let's try to make that one। So हम जाते हैं 3D में, अगर आप डेमो में जाएं, now you can see all the plans,
बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो टू द फर्स्ट फ्लोर। ये रही हमारी फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। हमारी फर्स्ट फ्लोर में कलर शो नहीं हो रहे हैं, सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, you can go to template, architecture template, apply, check your colors। अगर इन केस यहाँ से भी नहीं होता है then you can just select it, remove it, select it, go to override by category is not there। ओके यस, ये इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये प्लान हमारी ग्राउंड फ्लोर का है। यस, एक सेकेंड, यस ओके। सो दिस इज अवर ग्राउंड फ्लोर प्लान। अगर हम यहाँ पे जाएं, रेंज बेस लेवल जो है हमारे पास, आप चाहें तो इसे नन कर सकते हैं, ठीक है। नन करने के बाद हमारे पास जो सिर्फ फ्लोर प्लान है, वो मैं फ्लोर प्लान में बोल रहा हूँ, फ्लोर जो हमने फ्लोर बनाई है, ये टॉप वाली फ्लोर है जो सिर्फ ये नज़र आ रही है फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहें तो एक दो लेवल और बना सकते हैं। सो एक और लेवल मैं इसके ऊपर बना देता हूँ, 3000 सेलेक्ट दिस एल। ओके, वी हैव टू मेक इट इन दिस ऑल इन विच कंस्ट्रक्शन। सो ये देखें, हमारे पास एलिवेशन जो है ये इसमें शो नहीं हो रहा है। ये जो हमारे पास है इसमें एलिवेशन नहीं है। अगर आप जाएं न्यू कंस्ट्रक्शन में और अगर आप ये देखें तो ये जो हमारे पास व्यूज़ है, ठीक है, ये 4 एलिवेशन, ठीक है, ये चारों एलिवेशन जो है ये इन चार, ये जो है ये यही डिफाइंड है, ठीक है। सो दिस इज लाइक ईस्ट एलिवेशन जो कि ये वाला पार्ट है। सो यू कैन सी इट फ्रॉम द ईस्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपको फ्लोर प्लान में यहाँ पे भी नज़र आए, डेमो में भी नज़र आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको खुद से एलिवेशन की फिर डुप्लीकेट बनानी होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको एलिवेशन पे जाना होगा। सो एज यू कैन सी, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एलिवेशन में हमारे पास कोई भी व्यूज़ नहीं है। यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे हमारे पास व्यूज़ नहीं है। सो हम क्या करते हैं, ईस्ट को यहाँ सेलेक्ट करते हैं, दिस इज ए न्यू कंस्ट्रक्शन, गो टू डुप्लीकेट विद डिटेलिंग, ठीक है। एंड मैं इसका नेमिंग चेंज करके ईस्ट एग्जिस्टिंग कर देता हूँ, एग्जिस्टिंग, डन। एंड अगेन सेलेक्ट इट, डुप्लीकेट इट विद डिटेलिंग एंड देन सेलेक्ट इट एट न्यू, ठीक है। इसे हमने न्यू कर दिया। सो नाउ इफ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस ईस्ट, एंड यहाँ पे ये अभी दिखा रहा है कि ये ईस्ट वाली जो ये कौन सी फेज में, न्यू कंस्ट्रक्शन फेज में, हम इसे एग्जिस्टिंग में डाल देते हैं। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास एक प्लान है, एक व्यू आई है, दैट इज एग्जिस्टिंग व्यू। अगर आप ग्राउंड फ्लोर में जाते हैं तो ये देखें, हमारे पास जो व्यू है हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग में एक शो कर रहा है। सो यू हैव टू मेक द कॉपीज ऑफ ऑल 4, ठीक है। और सभी की 2 कॉपीज बनानी है आपको, हमेशा याद रखें, दैट इज डेमो एंड न्यू, क्योंकि सभी चीज़ें एलिवेशन में शो होंगी तब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक तो व्यू बना लिया है, एग्जिस्टिंग की जगह मैं इसका नाम चेंज करके डेमो कर देता हूँ। एंड यहाँ पे हम इसलिए इसकी नेम चेंज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है, तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं एलिवेशन में, तो ये देखें, ये ग्राउंड फ्लोर दिखा रहा है। बट अगर हम इसकी नेमिंग यहाँ पे कर देते हैं एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर, तो यहाँ पे सभी जितनी भी हमारी व्यूज़ है, सब में यहाँ पे दिखाएगा कि एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर, एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर, एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर। मैं इसे भी आपको बता देता हूँ कैसे हो गई है एग्जिस्टिंग। अगर हम इसे यहाँ चेंज कर देते हैं, यस, सो नाउ यू कैन सी कि ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। ये है हमारा एलिवेशन व्यू, ठीक है। अगर हम यहाँ न्यू एलिवेशन में जाते हैं तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर ही दिखा रहा है, बट दैट इज नॉट व्हाट वी वांट कि यहाँ सिर्फ ग्राउंड फ्लोर शो हो, एग्जिस्टिंग वहाँ ना लिखें, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें कि एग्जिस्टिंग वाली चीज़ों में आप एग्जिस्टिंग ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, दैट इज अगर आप इसकी नेमिंग चेंज करते हैं एग्जिस्टिंग, ठीक है, प्रेस एंटर एंड नाउ वी विल गेट अ वार्निंग, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि वुड यू लाइक टू रीनेम कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल एंड व्यूज, मैं यहाँ पे नो क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ क्या हो, ये जो एग्जिस्टिंग वाली चीज़ है यहाँ पे हमें ग्राउंड फ्लोर में एग्जिस्टिंग शो हो रही है, ठीक है। बट हमारी जो व्यू है, कोई भी व्यू में अगर आप जाते हैं, कोई भी एलिवेशन में जाते हैं, तो आपको यहाँ शो नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पे व्यू को रीनेम नहीं किया है। सो ट्राई नॉट टू क्लिक ऑन दैट वार्निंग जो हमारे पास एक आती है यहाँ पे। मैं यहाँ रीनेम करता हूँ एंड रीनेम करने के बाद यहाँ पे जो भी हमारी एग्जिस्टिंग
एंड नाउ यू कैन सी ये वाले यहाँ पे डू नॉट शो पे आप क्लिक ना ही करें तो बेटर होगा, बिकॉज अटैच वाले पे मैंने किया है एंड आज तक मेरी अटैच मैं वापस नहीं ला पा रहा हूँ, वो जो हमारे पास अटैच में वार्निंग आती है, सो रिमेंबर दैट। ओके, इसके बाद हमने एग्जिस्टिंग कर लिया है, एक हमारे पास आया है एलिवेशन दैट इज ईस्ट, यू कैन ऑल्सो कीप इट एज ईस्ट existing एंड डन, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस डेमो, आप इसे कहाँ पे रखें, ओके यहाँ पे हमें ये जो डेमो है इसमें क्या करना होगा, ये जो यहाँ फेस फिल्टर है, ठीक है, इसमें आप डेमो सेलेक्ट कर लें। सो दिस इज आवर डेमो। सो यहाँ से ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये न्यू कंस्ट्रक्शन एक ही फेज में हमने बनाया है, बट कीप इट एट डेमो। अगर हम यहाँ पे कुछ भी तोड़ते हैं, अगर हम इस विंडो को जो भी यहाँ पे शो हो रही है, इफ आई ट्राई टू डिमोलिश इट, गो टू आवर एलिवेशन ऑफ द डेमो, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये वाली चीज डिमोलिश में शो हो रही है। अगर हम न्यू में जाते हैं एंड यहाँ पे हम शो ऑल की जगह न्यू कर देते हैं तो यहाँ शो नहीं होगी, ठीक है। ये बिल्कुल छोटी सी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है, आप अगर इसे 2-3 बार ट्राई करेंगे खुद से ये हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमें और भी कॉपीज बनानी है, सो लेट्स जस्ट मेक फ्यू मोर कॉपीज। सो नॉर्थ की 2 कॉपीज, साउथ की 2 कॉपीज एंड वेस्ट की 2 कॉपीज, okay, and we have to rename it, so let's skip this north south west to our existing phase, ये existing में चली गई, and here we have this north, आप यहाँ पे एक में डेमो लिख दें, डेमो, एक में न्यू लिख दें। सो हम सभी चीज़ों, जितनी भी चीज़ हम लोग बता रहे हैं, सब चीज़ रेबिट, मतलब रेबिट को हम लोग बता रहे हैं कि आपको ये करके दिखाना, मतलब करके हमें देना है। सो वो कुछ भी, मतलब रेबिट को कुछ भी नहीं पता है, हम जो भी उसमें सेट करेंगे वो वैसा ही दिखाएगा, ठीक है। सो इट इज डेमो, दिस इज न्यू, दिस इज डेमो, 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 एंड देन आपको यहाँ डेमो आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट दिस, गो टू फेस फिल्टर, आपको यहाँ डेमो रख देना है, सेलेक्ट साउथ, गो टू फेस फिल्टर एंड गो टू डेमो, गो टू साउथ के बाद हमें वेस्ट, सेलेक्ट दिस, डेमो, डन। इसके बाद न्यू में न्यू कंस्ट्रक्शन एंड ओके दिस इज ऑलरेडी न्यू, दिस न्यू टू न्यू एंड दिस साउथ, न्यू टू न्यू, वेस्ट हमारी ऑलरेडी न्यू है, ओके डन। सो अब हमें यहाँ पे आप चाहें तो इसकी रीनेमिंग कर सकते हैं खुद से, ठीक है। अब हम इसे ओके लेट्स स्किप इट एंड कीप गोइंग। सो फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, हम एक छोटी सी प्लान बना लेते हैं। अगर आपको नीचे की वॉल्स देखनी है या फिर आपको ग्रिड लगाना है तो आप यहाँ पे जाएं, ग्रिड सेलेक्ट करें, GRE से शॉर्टकट फॉर द ग्रिड। यहाँ पे आप ग्रिड हमेशा मिडिल से लगती है, सो यू कैन जस्ट मेक इट एंड ओके दिस इज one of the grid, again CS is the shortcut to create similar second grid, done, done। you can either keep these grids or you can also not keep it। सो क्योंकि जब हम प्लान्स बनाते हैं अलग अलग प्लान्स, अगर आप ये जो हम ग्रिड बना रहे हैं अगर आप इससे रहने देते हैं यहाँ पे तो ये आपकी टेम्पलेट में इफेक्ट करेगी। आप जब भी कुछ भी अगर ओपन करते हैं न्यू प्लान तो आपको पहले से ग्रिड बनी हुई मिलेगी जो कि आपके न्यू प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होगी, ये आपके पुराने प्लान के अकॉर्डिंग होगी। बट मैं ग्रिड यहाँ इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमें ये पता चल सके कि हम कौन से वॉल पे काम कर रहे हैं और कौन से वॉल पे काम नहीं कर रहे। ओके ग्रिड सेलेक्ट CS, ओके इसकी जो नेमिंग है मैं A कर देता हूँ, सेलेक्ट दिस CS 1 2 3, select this, put it down, select this one, put it down,
सेलेक्ट वन ग्रिड, गो टू एडिट टाइप पे जाने के बाद यहाँ सेकंड एंड पे भी हमें सेम नेम शो कराना है. सो नाउ वी हैव आवर ग्रिड्स. यहाँ पे आप क्लिक करके इसे ब्रेक लाइन कर सकते हैं यहाँ पे. सो नाउ वी हैव अ ग्रिड ओवर हियर. गो टू फर्स्ट फ्लोर. अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ प्लान फ्रॉम दिस पार्ट दैट इज द D to C. यहाँ पे हम एक वॉल बनाते हैं D to C में. तो इसके लिए हमें जाना होगा फर्स्ट फ्लोर में मैं गया वॉल्स पे. यहाँ पे let's just keep whatever the size of wall that we are already provided with. एंड मैंने यहाँ पे वॉल, या अगर आप चाहें तो इस ग्रिड पे भी बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे रेंज बेस लेवल पे ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट करें. नाउ यू कैन सी द अंडरनीथ वॉल्स. ठीक है, एंड हम यहाँ पे वॉल्स बना लेते हैं एंड देन ट्रिम फ्रॉम हियर टू हियर एंड लेट्स जस्ट select this all walls. Go to its dimension up to level third floor, it is right. Go to view. Now we have something like this. एंड अब हम यहाँ पे इसे एक रूफ देंगे, जो कि, या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसे थोड़ी सी आगे मूव करा देते हैं. अगर हम देखें हमारे पास कोई और ग्रिड है. ओके, B to C पे अगर हम इसे मूव करा देते हैं तब आप लोगों को समझाने में मुझे ज़्यादा आसानी हो जाएगी. सो सेलेक्ट द मिडिल ऑफ इट, move it till here. So and align this one with this grid to the middle point and now we have it. So अब हमें यहाँ पे इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक एक रूफ देनी है. ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप चाहे आर्किटेक्चर पे, आप चाहे रूफ बाय फुटप्रिंट पे, एंड देन वेयर एवर यू वांट टू मेक. सो मैं इसे कहाँ बनाना चाहता हूँ, ये हम बनाना चाहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे. सो एज यू कैन से ये हमारा जो है फर्स्ट फ्लोर पे है. सो अगर इसके ऊपर हम रूफ बनाते तो ये हमारा बनता सेकंड फ्लोर, या फिर ओके दिस इज थर्ड फ्लोर, इट इज रिटन रॉन्ग. मैं इसे कर देता हूँ सेकंड, TF की जगह SF. ओके डन. SF. सो अगर हम यहाँ पे जाते हैं फर्स्ट फ्लोर एग्जिस्टिंग पे, आप जाते हैं यहाँ रूफ बाय फुटप्रिंट पे, हमें कहाँ बनाना है, ये रूफ जो बनाना है ये इस पोर्शन से इस पोर्शन तक हम बनाना चाहते हैं. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, इस विंडो से लेकर इस विंडो तक. ठीक है, एंड देन इट विल बी स्लैंटेड ओवर टू साइड्स. आप जो भी साइड सेलेक्ट करेंगे ये उस तरफ से 30 डिग्री या जो भी आप एंगल देंगे उस पर मूव हो जाएगा. ठीक है, तो मैंने यहाँ ओके कर दिया. नाउ गो टू 3D एंड ये देखिए ये हमारे पास ये रूफ आ गई है. नाउ यू कैन सेलेक्ट दिस रूफ, यू कैन डायरेक्टली चेंज इट्स एंगल. सो मैं यहाँ 45 कर देता हूँ. यू कैन इवन गो टू 55 एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास एक लॉफ्ट की भी स्पेस बच जा रही है. इफ यू वांट कीप इट डाउन 50 एंड इसकी जो साइज है 125 हम कर देते हैं. एंड देन सेलेक्ट ऑल योर वॉल्स ऑन द टॉप इन द चेन अटैच टॉप बेस. एंड ये देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गई. एंड वी वांट कि ये जो है अगर हम चाहें we can put it back. Okay, let's just move this walls a little bit more so that it will be easier for us. ओके, सो मैंने इसे ग्रिड पे नहीं रखा, विदाउट ग्रिड रखा है. एंड नाउ यू कैन सी कि हम जैसे ही इंटरनल वॉल को मूव करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें मैं इंटरनल वॉल्स को मूव कर रहा हूँ तो ये जैसे जैसे आगे जाएगा, ये हमने इसके साथ अटैच कर दिया है. तो ये जितनी भी इसमें गैप होगी, ठीक है, वो खुद से फिलअप कर लेगा. ये देखें, सो ये इसके साथ अटैच्ड है. अब हम इसे कहीं भी दूर ले जाएं, पास ले जाएं, ये अपने आप को यहाँ पे अटैच कर लेगा. सो हाउ वाज आवर दैट प्लान? कैटलिन, यस दिस वन. इसमें हमारी रूफ कैसी थी? सो दिस रूफ वाज फ्रॉम एंड टू एंड. ठीक है, तो एंड टू एंड रूफ बनाने के लिए हम इसे एंड टू एंड ही कर देते हैं. हमारी प्लान कहाँ गई? ओके, लेट्स जस्ट हाइड इट. सेलेक्ट ऑल योर वॉल इन चेन and okay, detach target or select all your walls, select all your roof, and now we can move it all.
एंड लेट्स जस्ट चेक, ये कुछ इस तरह से है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास वॉल नहीं है, ऑन दिस साइड ऑल्सो वी डोंट हैव अ वॉल। तो हम क्या करेंगे, इसमें जाते हैं हम, लेट्स जस्ट रिमूव द वॉल्स, इस वॉल को और इस वॉल को हम रिमूव कर देते हैं। सेलेक्ट योर प्लान, सेलेक्ट योर वॉल, सेलेक्ट योर दिस वॉल एंड द रूफ, मूव इट, yeah, so now I have moved it and let's try to, either you can edit profile or detach it from the top and then आप पहले इसे पूरी तरह से आप चाहें तो इसके साथ मैचअप करा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से इसे बरी कर लें फ्रॉम बोथ दिस साइड्स। इज दैट ओके, मैंने इसे कुछ इस तरह से बड़ा कर लिया है। देन सेलेक्टेड अटैच टॉप बेस, इसके साथ इसे हमने अटैच करा दिया है। इसके साथ हम ओके, दिस इज नॉट एबल टू अटैच, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद ये इसके अंदर नहीं जा पा रहा है। ओके, चेक इट। ओके, अगर इस तरह से अगर आपका अटैच ना हो तब we have another option that is selected, go to edit profile, close, and edit profile में आप क्या करें, you can just delete this wall, जो भी हमारे पास बाउंड्री लाइन है, and you can make your own boundary line। so हम यहाँ पे एक अपनी खुद की बाउंड्री लाइन सेट कर लेते हैं, and now you have it। so आप इस तरह से एक वॉल यहाँ पे बना सकते हैं। फिनिश, अनजॉइंट एलिमेंट, नो प्रॉब्लम, फिनिश, ओके डन। इसके बाद हमें दूसरी साइड इस वॉल को कॉपी कराना है। जस्ट सेलेक्टेड, सेलेक्ट योर मिरर एलिमेंट, यहाँ पे हम मिडल में जाते हैं एंड देन जस्ट मिरर इट एंड नाउ यू हैव इट, बट देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम, मे बी देयर वाज अ वॉल अर्लियर। ओके, यहाँ पे हमारे पास पहले से वॉल थी, सो लेट मी सी। ओके, लेट्स जस्ट रिमूव इट, सेलेक्ट इट, गो टू टॉप, मिरर, सेलेक्ट टॉप, मिरर। आप यहाँ से मिरर करा सकते हैं, आप फ्लोर प्लान से भी मिरर करा सकते हैं, यू हैव बोथ दी ऑप्शन। आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जाके ओके, इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल टू अस, सो टू मेक इट विजिबल यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर हटा देते हैं, नन। एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास दो साइड वॉल है और ये हमारी रूफ दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी व्यू रेंज के अंदर आ रही है। सो यू कैन इधर रिमूव इट और कीप इट, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, लेट मी सी, ओके, देयर इज अ डॉर्मर, ठीक है, ये डॉर्मर है। तो आज हम देखेंगे डॉर्मर कैसे बनाते हैं। पहले तो हम दो तरह से डॉर्मर बना सकते हैं इसमें, जैसे कि अगर आप इस प्लान में देखें तो यहाँ पे समथिंग लाइक 800 मिलीमीटर पे इस साइड और 800 मिलीमीटर पे इस साइड की गैप है, एंड उसके बाद हमारे पास एक ये रूफ है और ये एक वॉल आई हुई है जिसमें कि दो विंडोज़ हैं, ठीक है। इसे हम डॉर्मर कहते हैं इन रेविट, ठीक है। इन रेविट नहीं है एक्चुअली, ओरिजिनल में इसे डॉर्मर ही कहा जाता है। सो उसके बाद हम जाएंगे व्यू पे, आपको ये डॉर्मर कहाँ बनानी है ये आपको देखना पड़ेगा। सो मैं चाहता हूँ ये डॉर्मर दोनों साइड में बनाऊँ, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉर्मर। सो ये जो डॉर्मर है ये समथिंग लाइक स्क्वायर टाइप डॉर्मर है, ठीक है। ये एक फ्लैट रूफ डॉर्मर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक यहाँ पे वॉल बनानी होगी। मैंने आपको डॉर्मर के बारे में इससे पहले कभी बताया है कि डॉर्मर कैसे बनती है, एनीवन? नहीं बताया। नहीं बताया, ठीक है। मैं आज आपको पहले डॉर्मर के बारे में ही बता देता हूँ। सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे एक वॉल बनाया है, ठीक है। ये हमने रूफ के एंड से 1000 मिलीमीटर की डिस्टेंस से बनाया है, एंड लेट्स जस्ट मेक इट लाइक समथिंग लाइक दिस। एंड इस एंड से भी हम चाहते हैं 1000 मिलीमीटर हो। सो उसके लिए आप या तो पहले यहाँ पे 1000 मिलीमीटर पे एक वॉल ड्रॉ कर लें, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए 1000 मिलीमीटर कहाँ है। टेक अ डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, 900 है ये, सेलेक्ट करें एंड कीप इट टू 1000, ओके नॉट हंड्रेड्स, सेलेक्ट इट 1000, एंटर। सो यहाँ 1000 हो गई, एंड अगर आप यहाँ की भी डिस्टेंस चेक करना चाहते हैं, सो राइट नाउ एज यू कैन सी हम यहाँ पे इसे डोर के ऊपर बना रहे हैं। सो दिस इज 1000 मिलीमीटर ऑन बोथ द साइड्स। सो दिस इज वॉल दैट वी आर क्रिएटिंग, ठीक है।
and then trim this and keep it till this end. Okay, so how is our dormer right now? ओके ये थोड़ी अंदर में ये डॉर्मर है तो हमें इसे अंदर ले जाना होगा. ओके मैंने ये गलत साइड में बना दिया वॉल, और ये यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ, और यहाँ से लिख के यहाँ तक एक वॉल बना लेना है हमें. सेलेक्टेड, मूव इट आउट. आपको ये डॉर्मर की जो डिस्टेंस है ये सर्वे फाइल में मेंशन होगी कि ये डॉर्मर कितनी बाहर निकली हुई है एंड ऑल. ठीक है, सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे एक वॉल बनाया. अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं तो एज यू कैन सी कि ये जो वॉल्स है ये अंदर से आ रही है, बट हमें जो ये वॉल दिखानी होती है वो कहाँ से दिखानी होती है, वो दिखानी होती है कि इस रूफ के ऊपर ये वॉल लगी हुई है. अगर मैं आपको अपने प्लान्स में दिखाऊं तो ये देखिए, मैं हाइड कर देता हूँ. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो डॉर्मर की वॉल है, अगर मैं इस रूफ को हटाऊं तो ये कुछ इस तरह से अंदर से निकली हुई है, एंड ये जो वॉल्स है ये रूफ के ऊपर शुरू होती है. अगर मैं यहाँ पे रूफ लगा दूं फिर से, नॉट द एच आर, ओके एच आर रीसेट. सो ये देखिए ये रूफ है एंड ये जो वॉल शुरू हुई है ये रूफ के ऊपर से हुई है फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक वॉल कट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे चारों साइड वॉल बना लेते हैं. सो दिस इज द डॉर्मर एरिया हम मान के चलते हैं. आप यहाँ पे डॉर्मर में जाएं, सेलेक्ट योर डॉर्मर, पिक 3D एजेस, ऑल द एज. हम इन चारों एज को सेलेक्ट करेंगे एंड नाउ यू कैन जस्ट ट्रिम दिस पार्ट्स. ठीक है, सो नाउ दैट वी हैव ट्रिम दिस पार्ट, आप अगर यहाँ पे ओके करते हैं तो यहाँ पे एक ओपनिंग बन जाएगी. ये देखिए आपको यहाँ पे अंदर नज़र आ रही होगी सभी चीज़ें. ठीक है, एंड आप चाहें तो इस वॉल को, अंदर वाली वॉल को जो हमने अभी जस्ट बनाया है ऑन द इनर साइड, आप इसे डिलीट कर सकते हैं बिकॉज वी डोंट रिक्वायर दैट. अगर आपको जब डॉर्मर बनाते हैं देन ओनली इट इज़ यूज. ठीक है, एंड नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस. और अब हम इन सभी वॉल्स को ऊपर अटैच करेंगे. सो अटैच, एंड ये देखें हम अटैच पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, दैट इज टॉप एंड बेस. तो हम बेस पे क्लिक करेंगे. देन बेस हमारे कहाँ शुरू होगा, इस वॉल का वो होगा इस रूफ के ऊपर से. सो हमने सारी वॉल्स को सेलेक्ट किए हैं, अटैच टॉप बेस, हमने यहाँ बेस सेलेक्ट किया एंड जस्ट सेलेक्ट योर रूफ. एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक डॉर्मर लाइक स्ट्रक्चर बन चुकी है दैट इज ओपन फ्रॉम द टॉप. एज यू कैन सी, अगर मैं आपको डिफरेंट कलर में दिखाऊं तो ओके दिस इज नॉट रियली, हाँ या ये देखें अगर आपको दिख रही होंगी तो ये यहाँ पे गैप आ गया, यहाँ पे हमारे दोनों साइड पे डॉर्मर्स आ गए. एंड नाउ वी जस्ट हैव टू कवर दिस टॉप ऑफ इट. तो उसे कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, रूफ, रूफ बाय फुटप्रिंट, एंड दिस इज ऑन द, okay let's just make it on the floor and then I'm just creating it over here. ठीक है, ये यहाँ नहीं बनेगी, ये नीचे बनेगी, हमें इसे ऊपर लाना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक भी स्लोप नहीं चाहिए इस पे. सो डिफाइन स्लोप में हम अनटिक कर देंगे, फिनिश. एंड ये देखें ये हमारी ग्राउंड फ्लोर पे बनी है एंड दिस इज 400 मिलीमीटर, हम इसे कर देंगे 125 मिलीमीटर. एंड इसके बाद इसकी जो डिस्टेंस है, जो इस डॉर्मर की यहाँ पे डिस्टेंस है, मे बी आपको मेंशन हो ना हो तो आपको एंगल देख कर पता करना होगा खुद से. एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइक 2000 millimeter. Where if it works, no. So let's keep it at 2400 millimeter. Does it work? No. Let's keep it at 3000 millimeter. ओके नाउ यू कैन सी कि ये 3000 मिलीमीटर पर सेट हो चुकी है. ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है कि ये नीचे आए तो आप यहाँ पे इसे डायरेक्ट कर सकते हैं 2900 mm. ये देखें ये नीचे आ गई, बट ये वॉल्स इसके अंदर जा रही है, तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट ऑल योर वॉल्स अगेन, और यू कैन सेलेक्ट द वॉल इन चेन बाय प्रेसिंग टैब. एक वॉल पे जाएं आप, ये जो हाईलाइट हो रहा है एज यू कैन सी ये वाली वॉल हाईलाइट हो रही है, प्रेस टैब, तीनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, अटैच टॉप बेस, एंड इसके साथ हमने अटैच कर दिया. अब इसके साथ ओवरलैप नहीं हो रही है. नाउ वी हैव अ डॉर्मर लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर. अब आप इस डॉर्मर में एक विंडो ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे विंडो भी ऐड कर देते हैं. नाउ यू कैन सी कि ये विंडो की साइज ज़्यादा बड़ी है, तो हम छोटी विंडो सेलेक्ट करते हैं. 1 2 3 4. तो ये देखें ये हमारे पास एक डॉर्मर बन चुकी है. सो नाउ व्हाट यू वांट इज कि ये डॉर्मर ऑन द अदर साइड भी हो, जैसे कि मेरे प्लान्स में है. ये इस साइड भी सेम डॉर्मर टाइप है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव फ्यू ऑफ द ट्रिक्स
you can just select it all, select this one, you can also select your windows, but ये कट नहीं कर पाएगी. So you can just select all your dormer parts over here. ठीक है, हमने सारी डॉर्मो पार्ट्स को सेलेक्ट किया. गो टू द टॉप. आप अपने ये फ्लोर प्लान पे भी जाके कर सकते हैं. देन मिरर इट फ्रॉम द मिडल, एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास एक डॉर्मर लाइक स्ट्रक्चर आ गई है, बट यहाँ पे ये जो कट है हमारा ये नहीं आया है. सो वी कैन सेलेक्ट दिस कट, मे बी वी कैन मिरर दिस टू ऑन द टॉप. जस्ट गो टू द टॉप एंड देन मिरर इट, एंड लेट्स जस्ट चेक इट. अगर यहाँ पे कट लगाओ, ओके, सो मे बी ये डॉर्मर वाली चीज़ें मिरर नहीं होती हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से अपने डॉर्मर में कट लगाएंगे. सो यू विल हैव टू हाइड दिस टॉप व्यू. यहाँ पे आप टॉप पे जाएं, डबल एच इज दी शॉर्टकट फॉर दी हाइड बटन. ठीक है, या फिर आप ऐसे सेलेक्ट करिए हाइड इन व्यू एलिमेंट या कैटेगरी, आपको जो भी मन है आप यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आपको यहाँ जाना है अगेन डॉर्मर में, एंड अगर आप यहाँ पे रूफ सेलेक्ट करते हैं देन यू विल जस्ट गेट 3 साइड. ये देखिए हमारे पास 4th साइड नहीं है. सो अगर हम यहाँ पे ओके करते हैं तो ये कट नहीं बनाएगा. इसलिए आपको अगर याद हो तो मैंने यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा वॉल बनाई थी. सो वी हैव टू मेक दैट वंस अगेन. आप यहाँ पे जाएं, इस वॉल को on the other end बनाए, so not on the center line, let me make it on the exterior face. Okay, and till here. So now we have 4 face. ठीक है, ये 4 फेस बनाने के लिए मैंने एक वॉल यहाँ पे हमें बनाना होता है. ठीक है, इसके बाद डॉर्मर में जाएं, then select your roof, pick 3D lines, and now you can pick all your walls over here. Finish. ये हमारा कट लग गया. Now you can delete this wall, we don't require this anymore. HR is the shortcut. जो हमने यहाँ पे क्या हाइड करके रखा है, हमारी रूफ को. अगर आपको देखना है कि आपने क्या हाइड करके रखा है, आप यहाँ पे एक बल्ब वाली इमेज है यहाँ पे जिसे कहते हैं रिवील हिडन एलिमेंट. आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें आपको यहाँ पे ब्लू में शो हो रही है कि आपने क्या हाइड करके रखा हुआ है. तो ये हमारी रूफ है जो हिडन है. सो सेलेक्ट इट, अनहाइड इन व्यू. Okay, we cannot unhide it from here, so it is because of our template. So मैं यहाँ HR क्लिक कर देता हूँ, and now you can see कि यहाँ पे ये डायरेक्ट अनहाइड हो गई है. So if you remove your template, अगर हम यहाँ पे जाते हैं, where is that? Okay, there's no template selected. Hide in view. Just a second, let me check. Unhide, unhide, hide in view category नहीं आ रही है हमारे पास. Okay, no problem. ठीक है, तो HR इज ए शॉर्टकट, आप HR यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अनहाइड का भी काम ना कर रहा हो तो. उसके बाद अब हमें क्या करना है कि इस रूफ में आगे चेंजेस करने हैं. सो आप डॉर्मर आप लोगों को क्लियर है कि ये डॉर्मर हमने कैसे बनाया है? जी क्लियर है. ओके, सो देयर आर फ्यू मोर टाइप्स ऑफ डॉर्मर जो हम देखेंगे बेसिकली आगे आगे सेशंस में. एंड आज की सेशन कितने देर की होगी? इट्स ऑलरेडी बिन 1 आवर. सो डू यू वांट मी टू कंटिन्यू, और हम या फिर मैं इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ, देन वी कैन डू इट टुमारो ऑल्सो. सो हम देखेंगे कल की रूफ में कैसे चेंजेस करते हैं, और शुड आई कंटिन्यू? काफ़ी है आज के लिए, आज के लिए ज़्यादा हो काफ़ी. गया इसको. ओके, सो आप फिर से अगर आप लोगों को कहीं समझ में ना आया हो आप वीडियो देख सकते हैं, नहीं होगा तो आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली. एंड मैं सिर्फ यहाँ जो हमारी कलर्स है रूफ की उसे मैं चेंज कर देता हूँ टू समथिंग लाइक दिस. ओके ओके, एंड डन. गो टू हिडन लाइंस, डन. ओके, सो मैं इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ. सो सेव एज, एंड रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि आप टेम्पलेट की तरह भी इसे सेव कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की तरह भी इसे सेव कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको टेम्पलेट की तरह सेव करना है, सो नाउ यू हैव ऑल दिस सेटिंग्स. ये जितनी भी हमने सेटिंग्स अभी तक की हैं इस प्रोजेक्ट में, ये सभी चीज़ें सेव रहेंगी. ठीक है, तो पहले आप इसे एज अ प्रोजेक्ट सेव कर लें. तो मैं एज अ प्रोजेक्ट इसे सेव कर लेता हूँ बिकॉज मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए ताकि आप लोगों को कल या नेक्स्ट जब भी हमारी सेशन हो उसमें मैं आपको बता सकूँ. दिस इज नॉट द फोल्डर. Okay, anyone was asking something, I think. हेलो सर, आई मैसेज यू yesterday. तो जो मुझे आपने बीम का कहा था मैंने वो एनोएड ड्रॉ करने की कोशिश की थी, बट मुझे कह रहा था कि इस प्लान व्यू में मैं किसी भी लेवल पर ड्रॉ करूँ Okay, तो वो उसे ड्रॉ नहीं कर रहा था. okay, देखें. कह रहा था कि आपका जो एनोटेट्स है मैं कुछ भी ड्रॉ करूँ तो वो हो नहीं रहा. यस, तो अगर आप देखें जैसे कि मेरे पास ये फ्लोर प्लान है. ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैंने इसे सेव कर लिया ना. यस, आई थिंक सो.
मुझे बस एक बार देख लेने दें मैंने सेव किया कि नहीं फाइल्स को। फाइल ट्रेनिंग, या दिस हैज बीन सेव्ड। ओके, सो आपको मैंने कल कहा था कि आप एनोटेट से कुछ भी बना सकते हैं रेविट में। सो जस्ट फॉर द डिटेलिंग पार्ट, तो हम यहाँ पे गए डिटेल लाइन में। यहाँ पे हमारे पास कुछ चुनिंदा पहले से लाइन टाइप दिए हुए रहते हैं, जो कि हमें अगर बीम या कॉलम शो करना है तो ये काम नहीं आती है। हमें क्या करना होगा, पहले आपको जाना होगा मैनेज में जाने के बाद जाएँ एडिशनल सेटिंग में, यहाँ पे आप जाएँ लाइन स्टाइल में। उसके बाद लाइन स्टाइल में आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इसमें जाएँ एंड जस्ट मेक सम न्यू लाइन्स ओवर हियर। सो मैं एक लाइन बना लेता हूँ, दैट इज़ फॉर बीम। ओके, तो बीम की जो लाइन होती है उसे अब हम यहाँ डिफाइन करेंगे। सो इसकी जो प्रोजेक्शन स्टाइल होगी वो फोर लेंथ की होगी, मतलब कि 4 इज लाइक, मैं कैसे बताऊँ, दिस इज द थिकनेस 1 2 3 4 5 10 तक थिकनेस है। सो मैंने इसे 4 तक रखा एंड लेट्स कीप इट एज रेड, ठीक है। और इसके बाद ये जो सॉलिड है इसके जगह आप डैश लाइन या कोई भी लाइन अपनी तरफ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग विद द डैश 2.5, या फिर आप और भी कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, डैश डॉट डैश, जो भी लाइन से आप सेलेक्ट करें। सो लेट्स जस्ट गो विद 2.5, अप्लाई, ओके एंड लाइन। एंड अगर यहाँ पे हम जाते हैं, DL इज ए शॉर्टकट फॉर डिटेल लाइन। डिटेल लाइन आपको यहाँ पे भी मिल सकती है शायद, एनोटेट में जाएं एंड देन यू हैव दिस डिटेल लाइन, यहाँ पे आप जाएं तो ये जो अभी हमने बीम बनाया ये अभी अवेलेबल नहीं था, बट हमने जब बनाया तो ये अवेलेबल हो गया हमारे लिए। एंड नाउ यू कैन सी कि आप यहाँ पे इस तरह से इसे एनोटेट कर सकते हैं। सो हम बीम जो दिखाते हैं अपने प्लान्स में वो किस तरह से दिखाते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई प्लान ओपन हो तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, दिस इज द प्लान। सो ये देखें बीम हम कैसे शो कराते हैं। दिस इज अ लाइन दैट इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ रेड कलर, रेगुलर रेड कलर, और ये एक डैश लाइन है और एक ये रेगुलर लाइन है, ठीक है। तो हमें एक और लाइन बनाना होगा, इसकी भी हम थिकनेस जो रखेंगे वो 4 रखेंगे एंड देन लेट्स जस्ट मेक दैट। सो हम जाएंगे यहाँ पे एनोटेट पे। आप चाहें तो आप 3D में भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट हमें ये इजी पड़ता है और प्लस सभी व्यूज़ में दिखाने में, कॉपी करने में इट इज़ वे ईजियर, ठीक है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। सो हमें अगेन एक लाइन और बनानी होगी, एडिशनल सेटिंग लाइन स्टाइल, एंड यहाँ पे हम जाएंगे न्यू पे क्लिक करेंगे एंड न्यू पे हम इसकी नेमिंग दे देते हैं बीम सॉलिड लाइन्स। ओके फाइन, यहाँ पे आ गया हमारा बीम सॉलिड। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, इसकी भी लेंथ 4 दे देते हैं, इसे भी हम रेड कलर में रखते हैं, बट दिस टाइम इट इज गोना बी अ सॉलिड। जस्ट अ सेकंड, अप्लाई, ओके। सो नाउ वी हैव 2 लाइंस, जो हमने अभी 2 लाइंस बनाई है। अगर आप अब डिटेल लाइन पे जाते हैं एनोटेट में एंड गो टू डिटेल लाइन, यहाँ पे आप स्क्वायर सेलेक्ट करें एंड यू कैन गो टू बीम सॉलिड। आप मान लें हमें यहाँ से यहाँ तक बीम दिखानी है, सो यू कैन जस्ट मेक अ बीम ओवर हियर, ठीक है। और इसके बाद हमें बीच में इसे एनोटेट करना होता है। सो DL से शॉर्टकट याद रखें आप, एंड बीम, और ये हम मिडिल से ये जो लाइन है हमारी दैट इज द डैश लाइन, ये शो करा देंगे। एंड नाउ अब अगर आपको इसकी लेंथ देखनी है या लेंथ बढ़ानी है, आप इसे मूव आउट कर सकते हैं। लेट्स जस्ट select this one, move। सो आप इसकी लेंथ चेक कर लें, आपको जिस भी लेंथ की इसे देनी है। सो राइट नाउ इट इज़ एट 200। मान लें हमारे पास बहुत सारे बीम्स आते हैं जो कि 150 mm के होते हैं। सो 150 मैंने कर दिया। देन व्हाट यू हैव टू डू इज सेलेक्टेड डिलीट दिस लेंथ। अगेन ये जो हमारे पास मिडिल वाला पार्ट है इसे आप डिलीट कर दें, या फिर आप उसे मूव भी कर सकते हैं। देन जस्ट मेक इट फ्रॉम द मिडिल। ये देखिए हमारे पास डैश लाइन मिडिल से हमने बना दिया। एंड देन यू कैन ऑल्सो मेक अ ग्रुप ऑफ इट। अगर आपके पास 3-4 एलिमेंट है ऐसे, तो आप इसकी एक ग्रुपिंग बना लें, जो कि अगर आपको सेम बीम यूज़ करना है तो आप इसे ग्रुप में बना लें एंड राइट इट्स नेम इज बीम 150 mm, डन। एंड देन वी हैव टू मूव इट फ्रॉम द मिडिल टू मिडिल। सो ये देखें यहाँ से मैंने मूव करा दिया एंड एज यू कैन सी कि ये मिडिल में हमने यहाँ पे बना के रखा है ग्रिड लाइन, तो ये अपने आप खुद को एडजस्ट यहाँ कर लेगा। एंड नाउ यू कैन सी कि ये मिडिल में 153 mm का आ गया है। देन वी हैव द पैड स्टोन कैसा दिखता है, तो ये देखें अगर मैं इसे हाइड करके दिखाऊं आपको, तो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। एंड इस रेक्टेंगल में ये एक सॉलिड फील्ड कलर दैट इज रेड विच इज 50% या 40% ट्रांसपेरेंट, ठीक है।
तो पैड स्टोन अगर आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू कैन जस्ट गो फॉर लाइक इधर यू कैन मेक इट बाय अ न्यू लाइन, और आप क्या कर सकते हैं, यूज DL, गो टू पैड स्टोन की साइज होती है हमारी 440 mm। ये देखें, ये हमारे पास बीम आ रही है, सो वी डोंट वांट दिस बीम, एक्चुअली हमें क्या चाहिए, ये सॉलिड वाली कलर चाहिए। वी कैन मेक इट लाइक जो भी आप साइज चाहते हैं। सो 440 mm की होती है, so you can just make like this and go for 440 mm by 102 mm या फिर 203 mm की होती है। so 102 mm मैंने कर दिया, या फिर मैं 203 कर देता हूँ। ओके, 203, select it, delete it, and after that अब हमें इसे इनफिल करना। सो गो टू रीजन, फिल्ड। अब हमारे पास इसे जो अगर हमें फिल करना है उसे रेड कलर से फिल करना है, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो हम कहाँ पे गए, पहले मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। रीजन, फील्ड रीजन में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। सो यू द ओनली ऑप्शन वी हैव इज सॉलिड ब्लैक। अगर आप करना चाहते हैं तो ये ब्लैक कलर में हो जाएगी। अगर आप इसे फिल करते हैं ब्लैक कलर से तो ये पूरी तरह से ब्लैक कलर से फिल हो जाएगी। डन। सो नाउ यू कैन सी कि ये ब्लैक फील्ड है, बट वी वांट इट एज रेड फील्ड। तो उसके लिए आपको जाना होगा एडिट टाइप पे। एडिट टाइप पे जाने के बाद आपको डुप्लीकेट करना होगा, रेड कर लें इसे, ओके करें, एंड देन गो टू रेड। यहाँ पे आप रेड सेलेक्ट कर लें, ओके करें, ओके करें, एंड नाउ यू कैन सी कि ये कलर इसकी रेड में चेंज हो गई है। देन यू कैन जस्ट ग्रुप इट, आप इसे ग्रुप टुगेदर कर दें, एंड उसके पहले आप जाएं यहाँ पे ओवरराइड में, ओवरराइड बाय कैटेगरी करें। जस्ट अ सेकंड, आई एम कमिंग। कम करेगा। ओके, सो यहाँ पे हम जाएंगे ट्रांसपेरेंट पे 40% या फिर 60%, आपको जो भी ट्रांसपेरेंसी इसकी ऐड करनी है अप्लाई करते हैं इसे। 60% ये ट्रांसपेरेंट हो गई। नाउ यू कैन जस्ट ग्रुप इट and select this one, select the outer side of it, okay, select all, group। इसकी नेमिंग आप कर सकते हैं पैड स्टोन। एंड नाउ अब आपको इसे बार बार बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इसे मूव करा दें। यहाँ से हमने इसे मिडिल से इसके मिडिल में रख देना है। नाउ यू कैन सी कि ये अगर सही डायरेक्शन नहीं है, यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड मूव इट बाय 90। ओके, मूव इट फ्रॉम this middle to this middle, and now you can see कि यहाँ पे एक पैड स्टोन लग चुकी है। एंड दिस अगर आप अब इसे कुछ एडिट करते हैं इसमें, सो मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। सो ये हमने सेलेक्ट किया, इसे हम इसे कॉपी करा देते हैं, लाइक इसके ऊपर हमने यहाँ पे कॉपी करा दिया, सेलेक्टेड, कॉपी, डन। सो नाउ वी हैव दिस 2। अब अगर हम इसकी लेंथ बढ़ाते हैं या इसकी लेंथ छोटी करते हैं, सो हम इसमें जो भी चेंज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक इस बीम को रखा, जैसे ही हम इसे फिनिश करेंगे नाउ यू कैन सी कि ये वाली जो बीम है ये इसकी भी साइज छोटी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास ये कॉलम, ये हमारे पास पेस्टोन है, आप इसे अगर कॉपी कराते हैं फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, देन सेलेक्ट योर बीम, एडिट ग्रुप। बीम जो हमारे पेस्टोन के ऊपर रहता है वो रहता है 100 mm। तो आप इसे, इसकी लेंथ आप देख लें पहले, आप इसे इस तरह रखें। सो ये जो हमारा डिस्टेंस है ये कितना है, ये हमारा 203 mm है शायद। लेट मी चेक, पैडस्टोन 203 mm का है। तो हमें अगर इसे 100 मिलीमीटर इस पैडस्टोन के ऊपर रखना है। सो एज यू कैन सी, एक और चीज़ आप मैं दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ फिनिश करता हूँ, ओके करता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो ये जो है, ये इन चीज़ों को भी आपको ओवरराइड करके 50% इसकी जो कलर्स है उसे कम करना होगा। सो जस्ट सेलेक्ट इट, गो टू ओवरराइड कैटेगरी, where is that, okay, let me select it, select edit group, select your lines, override by category, okay, we don't have half tone option, okay, ये ना भी करें तो चलेगा। ओके, एडिट, और यहाँ पे ये जो बीम हमें नज़र नहीं आ रही है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट इट एंड ब्रिंग टू फ्रंट। नाउ यू कैन सी कि ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रही है, एंड ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद आप इसकी डिस्टेंस देख लें। तो हमें यहाँ से ये पोर्शन जो है यहाँ तक का डिस्टेंस 100 है, वी वांट इट एट 100।
अगर हम इसे फिनिश करते हैं तो हम यहाँ जो भी हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं टू दिस बीम, ये सेम चेंजेस अलग वाली बीम में भी हो जाएंगे। आप चाहते ना हो तो अनग्रुप कर दें इसे एंड डन। ये अनग्रुप हो गई एंड इसमें आप जो चेंजेस करेंगे वो आपको दिखेंगी। सेलेक्टेड ऑन द अदर साइड ऑल्सो, अगर आपको 100 mm रखनी है इसे तो आप इसे मिडिल में रख सकते हैं। सेलेक्ट चेक योर डिस्टेंस, इट इज़ एट 81, सो मैं इसे 100 पे कर देता हूँ। ओके फिनिश डन। सो ये पहली बार जब मैंने किया ये थोड़ा लंबा पड़ गया, बट नाउ अगर आप बनाते हैं इसके बाद कहीं भी तो ये आपको अब ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, सो आप फिर से जाएं एनोटेट पे, फिर से जाएं डिटेल लाइन पे, बीम पे, एंड नाउ यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ बीम हियर टू दिस प्लेस। सो आप जिस भी लाइन टाइप को आप सेलेक्ट करेंगे उस लाइन टाइप से यहाँ पे आप बना सकते हैं इसे। सो ये जिसका क्वेश्चन था आपको समझ में आया कि ये कैसे हुआ? यस हो गया। बस ये क्वेश्चन है कि अगर अब हम इसको खोलेंगे 3D में तो ये बीम ओके, का ये 3D में किस तरह बीम शो होगी 3D में लाइक शो नहीं है। 3D। एक्चुअली हमें 3D में शो नहीं कराना होता, हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमें 3D में शो नहीं कराना होता है, हमें सिर्फ प्लान व्यू में से शो कराना होता है इसे। ठीक है, बट मैं इस वक्त जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसमें मुझे बीम 3D पे शो कर रही है, और मेरे पास इन जो केस फैमिली में है वो है ये आइक ओके गर्डर, लेकिन मुझे चाहिए बॉक्स ओके और एचएसएस। ओके इन वो केस यू कैसे वांट होगा? टू शो इट इन 3D, मैं ट्राई करके देखता हूँ। आप स्ट्रक्चर पे जाएं, स्ट्रक्चर पे जाने के बाद बीम पे जाते हैं, बीम पे जाने के बाद लोड फैमिली पे जाएंगे एंड लोड फैमिली में हमारे पास आएगा स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग। इसमें हमारे पास होना चाहिए स्टील। अच्छा, कौन सी बीम है आपकी? बीम की नेम एचएसएस रेक्टेंगल बॉक्स एचएसएस। HSS। रेक्टेंगल बॉक्स तो आपको यहाँ नहीं मिलेगी, बट HSS मिल जानी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा था HSS। अगर यहाँ से नहीं मिल पा रही है तो आप जा सकते हैं इंसर्ट पे एंड लोड ऑटोडेस्क फैमिली पे। आफ्टर दिस structural framing, select something HSS, press enter. Okay, we don't have the result for that. Maybe it is not available of that size. अच्छा, आपको पता है कि वो बीम दिखती कैसी है? अगर आप को वो बीम अगर आपको मिल जाती है, इन केस आप कोई भी बीम यहाँ पे बना लें, ठीक है, या आप उसकी साइज यहाँ से ये अपने हिसाब से चेंज। सिंपल बॉक्स है, लाइक मुझे तो रेक्टेंगल, इट्स अ इट्स सिंपल जस्ट अ रेक्टेंगल रेक्टेंगल। तो स्टील। आप एक काम कर सकते हैं, आप स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग में जाके स्टील में सिंपल रेक्टेंगल वाली कोई बीम आप देखें। अगर आपको इसमें कोई मैच, कोई भी मैचिंग, जैसे कि ये हमारे पास HSS जैसे ये है, हॉरिजॉन्टल, ये ये है आपके पास, मैंने इसे सेलेक्ट किया। इफ़ यू वांट दिस साइज, अगर आपको इसमें से कोई भी एक साइज नहीं चाहिए मेरे देन, पास नहीं। अच्छा अगर आपके पास साइज नहीं है देन जस्ट सेलेक्ट एनी वन ऑफ इट। ठीक है, प्रेस ओके, गो टू एडिट टाइप। आप एडिट टाइप पे इसकी जो वैल्यू है, वो आपको जो वैल्यू आपको मिली है यहाँ पे आप उसे डुप्लीकेट करके माई HSS सेलेक्ट कर लें एंड देन आप इसकी जो वैल्यू है, मुझे नहीं पता क्या है, सो आप इसके डायमेंशन के हिसाब से चेंज कर लें। चेंज करने के बाद अगर आप इसे प्लान में लगाते हैं तो मे बी इस प्लान में ये शो ना हो। ठीक है, ये लेकिन अगर आप 3D में जाते हैं तो ये आपको शो होगा। नहीं, अभी जो पीछे आपको वो आया था ना, ये न्यू न्यू नोटिफिकेशन आया था नीचे, जब ओके आपने उसको प्लान में ओके किया था, मेरे साथ भी आ रहा है कि जब भी मेरे को बीम ड्रॉ कर। ओके, ये आपका यहाँ पे बीम शो नहीं हो रहा है। नन ऑफ द एलिमेंट ये क्रिएटेड इन द एग्जैक्टली ग्राउंड फ्लोर व्यू, यू मे वांट टू चेक द एक्टिव व्यू, इट्स पैरामीटर एंड विजिबिलिटी सेटिंग्स। सो फॉर दैट वी कैन गो टू वेयर इज आवर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो हमारे पास इसमें शायद ना हो। सो स्ट्रक्चर अगर हमें इसमें विजुअलाइज कराना है, लेट मी सी कि हमारे पास कोई ऑप्शंस हैं। गो टू टेम्पलेट, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, स्ट्रक्चरल प्लान, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान, ओवरराइड। इसमें हम स्ट्रक्चर में जाएंगे, स्ट्रक्चर को एक्टिवेट कर देंगे। इसमें हम बीम शो करा रहे हैं, बीम्स देखें आप, बीम बीम बीम। ओके, लेट मी रिमूव दिस आर्किटेक्चर पार्ट। स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग शो हो रही है, मास फ्लो जेनेरिक मॉडल लाइंस।
डिटेल लाइंस, ओके स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग तो हमारे यहाँ पे ऑन है, बोल्ट्स एंकर्स ये सब नहीं विजिबल है। फिर स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग, ये रही हमारी फ्रेमिंग, इसमें हमारी बीम है। सो इट्स जस्ट दैट कि मुझे लगता है कि ये एक्टिवेट नहीं होंगी इसलिए शायद शो नहीं हो रही है, बट वी कैन फाइंड बीम ओवर हियर समवेयर। स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग, हिडन कॉर्ड, प्लान, प्राइमरी, रिजिड, bolts reference no. Okay, let's just try it. Okay, and now you can see कि ये बीम शो हो रही है। अगर आप यहाँ पे फाइन पे जाते हैं, ओके वी कैन नॉट गो डायरेक्टली टू फाइन, लेकिन ये बीम हमें यहाँ शो हो रही है, बट आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स तो नहीं होंगे, आर्किटेक्चर एलिमेंट। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको जाना है विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे। ओके, नॉट फ्रॉम हियर, वी कैन गो टू दिस फ्रेमिंग एंड अच्छा, अगर हम आर्किटेक्चरल प्लान सेलेक्ट करते हैं, ओके देन व्हाट यू कैन डू इज सेलेक्ट दिस, गो टू डुप्लीकेट, डुप्लीकेट इट विद डिटेलिंग। डिटेलिंग में जाने के बाद आप यहाँ आर्किटेक्चरल फ्रेमिंग सेलेक्ट कर लें एंड यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें विजुअलाइज करानी है उसे विजुअलाइज करा दें। फॉर एग्जांपल मैंने आर्किटेक्चर विजुअलाइज कराया है, स्ट्रक्चर भी विजुअलाइज कराया है, आपका ये स्ट्रक्चर ऑफ था पहले। ओके 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 ओके, फिर भी हमें हमारी वॉल्स नज़र नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं? मुझे फिर से देखना पड़ेगा पैरामीटर्स। सो हमारी बीम एंड सारी चीज़ें तो नज़र आ रही हैं। सो लेट मी गो टू स्ट्रक्चर, वॉल्स, ओके। सो आई थिंक कि इसमें ये हमारी फ्लोर आ गई, ये हमारी बीम आ गई। यहाँ से अगर हम चेंज नहीं कर सकते इसे चेंज करने के लिए not from here, view template, manage template, elevation, view multiple, इसमें सभी चीज़ें शो हो रही हैं, वॉल्स भी शो हो रही हैं। ओके सो मैं देखता हूँ कि ये क्यों नहीं हो रही है, बट अगर आपको बीम शो करानी है देन ये जो मैंने अभी यहाँ पे किया है, आपको एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद यहाँ मल्टीपल में आपको स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे व्यू टेम्पलेट शायद अप्लाई करके रखा है इसलिए यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा है, बट आई विल गेट बैक टू यू विद द आंसर। एंड यही चीज़ें हैं कि हमारा जो प्लान है ना, ये स्ट्रक्चर फ्रेमिंग प्लान, यहाँ पे हमारा पहले स्ट्रक्चर ऑन नहीं था, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑन करा दिया है बस, ठीक है। आप इसे ऑन करके देखें एंड फॉर द वॉल्स एंड ऑल मैं देखता हूँ कि स्ट्रक्चर में वो क्यों नहीं शो हो रही है। कि मैंने जो स्ट्रक्चर मतलब मैंने कुछ वीडियोस स्ट्रक्चर के ऊपर भी इससे पहले बनाई हुई हैं, उसमें मैंने जो यूज़ किया है वो है स्ट्रक्चरल वॉल। अगर हम इसमें स्ट्रक्चरल वॉल बनाते हैं तो वो हमें नज़र आ जाएंगी। अगर हम यहाँ से इस वॉल को बनाते हैं, यू कैन सी ये स्ट्रक्चरल वॉल है, और ये जो हमारी आर्किटेक्चर की वॉल है अगर हम यहाँ बनाते हैं ये नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। बट मैं देखता हूँ कि स्ट्रक्चर ये आर्किटेक्चर वाली वॉल स्ट्रक्चर में कैसे शो कराते हैं ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड यहाँ पे अगर ये जो है आपकी ये शायद एक्टिव होगी, यहाँ पे अगर आप फाइन पे जाते हैं तो ये जो आपको दिख रही है बीम, ये आपको ओरिजिनल फॉर्म में इसके दिखेगी। So let me just remove it, all the use none, apply, okay, and then go to view, fine। now you can see ये जो हमारे पास बीम है ये आपको अच्छे से यहाँ नज़र आ रही है, ये बीम हो गई, ये हमारी वो बीम हो गई, ठीक है। सो आप जहाँ से भी बीम बनाएंगे वो नज़र आएगी आपको, लेकिन मे बी इसके लिए आपको स्ट्रक्चरल वॉल बनाना होगा अभी के लिए, और आर्किटेक्चर वॉल मैं देख के आपको बताता हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मतलब थोड़ी बहुत शो करा सकते हैं बीम को। ये जो भी आपने बीम बनाई ये हम प्लान में शो होगी, जो अगर आप इसका वो खोले 3D, ये जो दोनों बीम आपने नहीं बनाई है आपको 3D में भी शो होगी। 3D में अगर आपको शो कराना है तो अगेन यू हैव टू गो टू द टेम्पलेट में जाकर आर्किटेक्चर है ये यहाँ हमारे पास, आप यहाँ पे फ्लोर स्ट्रक्चरल प्लान्स एरिया पे क्लिक करें, स्ट्रक्चरल प्लान क्लिक करें, अप्लाई, ओके।
और अब जो हमारे पास ये बीम आ रही है, ये देखें आप, अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज आवर बीम। आप इसकी जो भी हाइट, स्टार्ट, एक्सटेंशन और या फिर इसकी जस्टिफिकेशन मैं दे देता हूँ, लाइक 2500 mm पे फ्रॉम बोथ साइड, 2500, ठीक है। वाई जस्टिफिकेशन, ओके दिस इज वाई, तो हमें शायद जी जस्टिफिकेशन इसकी चेंज करनी होगी। जी जस्टिफिकेशन जो है इसकी, ऑफसेट फ्रॉम जी लाइक 2500, ये गई ऊपर, या दिस इज हियर, यू कैन गो टू फाइन, ओके अगेन वही टेम्पलेट प्रॉब्लम, कहाँ गई हमारी स्ट्रक्चरल 3D अप्लाई, ये देखें आप, ये देखें ये जो बीम है ये 3D में भी आपको शो हो जाएगी, दिस बीम और अनदर बीम, ये यहाँ पे, थैंक यू सो मच। ओके। सो आपको यहाँ से टेम्पलेट में चेंज करना है, एंड दिस लुक्स ऑड, सो मुझे थोड़ी सी विजुअल ग्राफिक्स में चेंजेस करने होंगे, ओके वी कैन नॉट चेंज इट डायरेक्टली, फिर से मुझे, अच्छा टेम्पलेट में थोड़ी सी चेंजेस करने होंगे, बट दिस इज हाउ यू कैन शो। अगर आपको 3D में शो कराना है तो ये शो तो हो जाते हैं, बट इन प्लान व्यू मैंने कभी इसमें ट्राई नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट स्ट्रक्चर प्लान ही बनाए हैं, सो मैं फिर भी देख के आपको बताता हूँ, आप टेंशन ना लें, ठीक है। आज तो शायद मुझे टाइम ना मिले, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी पेंडिंग्स प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं आज, सो लेट्स इट, मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं देख लूँगा, ओके। एंड एनीवन एल्स, अगर आपको आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, एनीवन? नहीं अभी के लिए नहीं है, लेकिन ये वीडियो देख के अगर होगी तो फिर आपको जरूर बताएंगे। ओके, सो ठीक है, मैं लीव करता हूँ, मैं भी थक गया हूँ थोड़ा, ओके। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट सेशन, okay, so I'm just stopping this